Good morning, everybody. Welcome you all to the fifth day of the 6-day workshop. I hearty welcome to the principals, participants for this 6-day workshop. Today we are having with us Mr. Sushant from Homi Bhabha Center of Science Education, Mumbai. And all of us know that we are going on learning how to do the foundational numeracy and foundational ideas for the small kids. And in this order, today, Mr. Sushant will be discussing activities for the development of spatial sense in early learners. Mr. Sushant is working as a project scientific assistant B at Homi Bhabha Center for Science Education, TIFR, Mumbai. He completed his master's degree of mathematics from Mumbai University. Before joining HBCSE, he was teaching mathematics privately to tuition for grade 9 to 12 of CBSE and Maharashtra board. At HBCSE, he is taking session for teachers, students, educators, etc., research and outreach activities. In Homi Bhabha, he works in many outreach activities by conducting mathematics lab activities. He is working with the different teacher groups and student group while different workshop and conducting different workshop at HBCSE. And with the team members of HBCSE mathematics team, he has conducted a lot of workshops with them for the middle school teachers on research-based fraction teaching and international GeoGebra conference. On behalf of the directors at Mumbai and all the principals and all the participants, hearty welcome to Mr. Sushant. Mr. Sushant, I will just inform you that here we are having 50 teachers. They are all HMs and PRTs, the senior PRTs from 25 regions. We are training them as master trainers. They are going to train the teachers in their respective regions. Along with them, we are having 25 principals who will be acting as the course directors for the workshops to be conducted at the regional level. And we are eagerly waiting for your session. Therefore, once again, hearty welcome to the young and energetic Sushant. Now, Sushant, the floor is yours. Thank you, Srinivasan sir, for the intro. Hello, everyone. I hope everyone is safe and healthy right now, because we all are suffering. The entire world is suffering because of Corona, and during that time, I can understand how it might be difficult for all of you to manage time, manage your other activities, your career, and joining the session. Thank you for that. So मेरा जो सेशन होगा, इसमें 3 चीजें मैंने इन्वॉल्व की हैं. ऑल्सो अगर मैं कहीं पे हिंदी में ज्यादा शिफ्ट हो रहा हूँ और आपको लग रहा है कि वापस इंग्लिश में शिफ्ट होना है, या if somebody is not understanding Hindi, I will just tell me. You can write it in the chat box, or you can switch on the mic and tell me. So one thing is there that I haven't worked with first and second grade student yet. I have worked always with higher grade students. And when Shweta Naik, you had her session on first day, so she approached me for this session, and I was a bit confused that okay, I haven't worked, so will I be able to do it or not? So then when I started reading the research point of view of spatial reasoning, I realized so many things. One of them was when I was teaching to let's say a grade 10 student or 12 student, when I was teaching mathematics to them, whether it is algebra, whether it is geometry, whether it is some three-dimensional space, and which requires visualization, I realize how spatial reasoning is important for all those higher level. So I was quite stunned. I was like, अच्छा ये भी चीजें होती है, एंड यहाँ से शुरू होती है इन सारी चीजों की. एंड अगर ये चीज अगर वीक रह जाए, सो आगे जाके बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हो सकती है. हम अभी रिसर्च में भी बहुत बार ये कहा गया है कि जिन स्टूडेंट्स का ये पार्ट स्पेशल रीजनिंग अगर वीक रहता है या अंडरस्टैंड नहीं कर पाते उनका स्पेशल रीजनिंग, सो इशू ये होता है कि आगे जाके उन्हें मैथ्स
में विजुअलाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, समझने की प्रॉब्लम होती है। सो आज का जो सेशन होगा उसमें 3 पार्ट्स होंगे। तो पहला पार्ट होगा कि रिसर्चर्स क्या कहते हैं, रिसर्चर्स का कहना क्या है, वर्ल्ड वाइड क्या रिसर्च हो रहा है स्पेशल रीजनिंग में। हम एक रिसर्च पेपर का पार्ट साथ में पढ़ेंगे भी और थोड़े से नोट्स निकालेंगे उसके ऊपर, वो एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है हम टेक्स्ट बुक में के आपका फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के जो टेक्स्ट बुक है उसमें कुछ चैप्टर्स मैंने देखे हैं कि जो स्पेशल रीजनिंग के साथ डील करते हैं, हम उनके साथ उनका एनालिसिस करेंगे, उनके कुछ एग्जांपल्स का। तीसरा पार्ट होगा एक्टिविटीज की, अगर स्पेशल रीजनिंग किसी का वीक है, अगर आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका स्पेशल रीजनिंग प्रॉपरली नहीं हो रहा है, सो वी कैन डू सम एक्टिविटीज विद देम। एंड इस अगर वो आप हायर लेवल पे, श्रीनिवासन जी वाज टेलिंग मी टुडे मॉर्निंग दैट sometimes you are asked to teach to higher students also, so sometimes you might have to develop that activity for those higher students. So वो एक्टिविटीज कैसे किस लेवल पे कौन से स्टूडेंट्स के साथ डेवलप करने उसके बारे में भी डिस्कस होगा। सो आई विल बी नाउ शेयरिंग माय स्क्रीन। ऑल्सो एक चीज है कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है टीचिंग का, वो आप शेयर कीजिए। कहाँ पे आपको लगता है कि आपको कुछ क्लिक हो रहा है, कुछ स्लाइड्स के बाद मैं हमेशा पॉज लेने वाला हूँ आपके जो व्यूज है वो जानने के लिए। सो आपको जो भी महसूस हो रहा है कि ओके मैंने अपने स्टूडेंट में ये चीज नोटिस की थी या ये चीज मुझे स्ट्राइक हो रही है, ये चीज मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ, शायद डिसएग्री भी कर रहा हूँ, सो आप प्लीज वो नोट डाउन कीजिए और जहाँ पे भी पॉज होगा आप आपका माइक ऑन करके मेरे साथ शेयर कीजिए। इज दैट ओके फॉर ऑल? या थैंक यू। So I will start sharing my screen now. Visible to all? Okay, so I have also. Okay, okay. Thank you, Jagdish. Good morning. भूषण सर आपका एको आ रहा है पीछे से। ओके, थैंक यू। सो अंडरस्टैंडिंग स्पेशल रीजनिंग। तो आपके हिसाब से स्पेशल रीजनिंग क्या है? आप में से कोई आंसर देना चाहता है या आप माइक ऑन करके एक एक करके बता सकते हैं या फिर आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। स्पेशल रीजनिंग आपके हिसाब से क्या है? डेफिनेशन नहीं देंगे तो भी चलेगा, आपके हिसाब से सिंपल लैंग्वेज में। Understanding of objects in a space. Okay, yes, understanding objects in a space. I'm also noting down. Sushant, you are able to read the chat, whatever we Yes, are writing, yes. or you want my help? I have actually 2 devices right now, so I can. Okay, then carry on. Thank you, sir. Thank you. Yeah. So understanding shape, size, position, and direction. Okay. Yes. Then its movement. Yeah. Thank you, sir. Anybody want to add anything to it? Balakrishna sir and Srinivas sir has answered. Good morning, sir. Yes, Neeta ma'am. This is an ability, sir, to make changes or manipulate shapes and objects physically or mentally according to their shapes or according to their size. So it's an ability. Thank you, Neeta ma'am. Yes, all of you are correct. One thing I want to underline Neeta ma'am's point, that mentally, that word mentally. So most of the time maths में जैसे ही हम higher standards में बढ़ेंगे, we won't be able to like हर बार हमारे पास TLM नहीं होगा। So वो जो mental level पे जो हमारा काम हो रहा है, without, अगर ये पेज है मैं बिना सोचे, अगर ये रेक्टेंगल है मैं उसे ऐसे करके अगर कैसे विदाउट टचिंग अगर मुझे पता चल रहा है कि ये कैसे दिख रहा है, वो डेवलप हो पाना बहुत जरूरी है। और वो ये एज में ही होता है। मैंने ऐसे भी कहीं पे देखा है कि एक टाइम के बाद मैं कुछ स्टूडेंट्स को सिखा रहा था 11th-12th के, और उनको वो विजुअलाइज ही नहीं हो पा रहा था कि वो सरफेस एरिया दिखेगा कैसे जैसे। और ये बहुत हायर लेवल के टीचर्स अगर आपको कल भी बोलते हैं कि ओके आप तो क्या फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड को सिखा रहे हैं, आप उन्हें यही चीज याद दिलाइए कि अगर हमने ये स्पेशल रीजनिंग नहीं ठीक से सिखाया तो आपको अच्छे स्टूडेंट नहीं मिलेंगे। सो
लेट्स मूव अहेड. So what is spatial reasoning? So ये definitions कुछ मुझे मिले हैं. It is capacity to understand, reason and remember the spatial relation among the objects and space. Spatial reasoning is a category of reasoning skills that refer to the capacity to think about objects in 3 dimensions and to draw conclusion about those objects from limited information. So यहाँ पे 3D का mention आया है. लेकिन आप सभी जानते हैं कि हमको ये सारी जो चीजें हैं वो हमारे लिए है. हम बच्चों को सिखाते वक्त ये चीजें तो नहीं बता सकते. सो आगे और भी चीजें होगी, डिस्कशन में हमारे निकलेंगी, तो हम देखते हैं और क्या है. तो आपको क्या क्या लगता है? तो कुछ चीजें अभी सबने बोली, कुछ नीता मैम, बालकृष्ण सर और श्रीनिवास सर ने कही है. I think Sunil Kumar sir is also saying spatial sense is understanding of shape, size, position, direction and movement, being able to describe and classify. Thank you, Sunil sir. Yes, that is also very nicely written. So आपको क्या लगता है कि जो स्पेशल रीजनिंग में, जैसे बहुत सारी चीजें आपने डिस्कस कर ली है, पहले से लिस्ट आउट कर ली है, सो और भी क्या क्या चीजें होंगी जो इसमें इंक्लूडेड होंगी? आपको क्या लगता है, कौन सा पॉइंट है जो कोई आपको लग रहा है मिसिंग है? जैसे अभी तो शेप, साइज, ability to imagine and visualize. That is relating the child in the environment where he is living. Okay, nice point. Relating the environment. Sushant sir, objects like different if we look from different sides. जैसे कोई कार है, किसी बच्चे को हमने दिखाया, उसका टॉप व्यू अलग होगा, उसका साइड व्यू अलग होगा, उसका फ्रंट व्यू अलग होगा. तो बच्चे की कैसी इमेजिनेशन है? इफ वी शो ए हाउस और ए हट to a children and we give them the task to draw the diagram of the hut, आप देखेंगे हर बच्चा अलग अलग प्रकार से उसका डायग्राम बनाएगा. कोई फ्रंट व्यू से बना देगा, कोई साइड व्यू से बनाएगा, कोई टॉप व्यू से बनाएगा. किसी को 3D का व्यू बनाने में उसमें दिक्कत महसूस होगी. तो हमारे को इस स्पेशल रीजनिंग के हेल्प से उस बच्चे में ये कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने हैं. तो जो आपने कहा कि आगे चलकर 3D वाला जो पार्ट हम बच्चों को पढ़ाएंगे, तो पहले से उसको एक इमेजिनेशन जो होती है, इमेजिनेशन डेवलप करनी है हमारे को कि ऐसा होने से ऐसा होगा. जैसे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उस रेक्टेंगुलर बॉक्स को इफ यू ओपन द रेक्टेंगुलर बॉक्स, उसका शेप कैसा हो जाएगा है, और वो क्लोज है तो कैसा होगा. Very nice. These are the things. Sir, may I that sum up that capacity to differentiate between 2D and 3D shapes and manipulate 2D and 3D shapes, I believe. Sir. Oh yeah, manipulate is the word. Yeah, nice. Go ahead. Yeah. Also यहाँ पे chat में कुछ replies आए हैं. Estimate the size, Lakshmi Priya ma'am. Yes, thank you. Yeah, Mamta ma'am. Yes, so they mentally generate and they understand and recall about the shapes, like what they have seen earlier, like square hair or circle, like this. Yes. Mentally generate and develop. So अभी मैं कुछ chat box के replies पढ़ रहा हूँ. Hand coordination, eye hand coordination, very nice point actually. जो हम देख रहे हैं वो कर पा रहे हैं कि नहीं हाथ से, वो एक कोऑर्डिनेशन भी स्पेशल अंडरस्टैंडिंग में का पार्ट है. अजित कुमार सर का रिप्लाई था. राफत सर का रिप्लाई, एबिलिटी टू थिंक अबाउट ऑब्जेक्ट्स इन 3 dimensions. यस. एस्टिमेट द साइज, हाउ बिग will it get adjusted the given space. Lakshmi Priya ma'am again. And Sunil Kumar sir का भी एक special orientation. Yeah, orientation is another word which we will be encountering. Doing special work in the mind. Okay sir. Yes. So आगे बढ़ते. थोड़ा सा टाइम का क्रंच है और हम ऑनलाइन मोड में है, तो सारे रिप्लाईज मैं ले नहीं पा रहा हूँ. So let's जो कुछ रिसर्चर्स क्या कहते हैं इसके बारे में, उसके बारे में जानिए. According to Dikrant Tata, who was math educator, the following 3 powers involved in working with space. पहला है imagining, which involves seeing what is said. Second है constructing, which involves seeing what is drawn or seeing what is seen. तीसरा है figuring,
which involves drawing what is seen. और एक चीज में सिर्फ आप शायद स्टीफन हॉकिंग्स तो जानते होंगे. सो डिक्रंत ताता जो है वो उनके टीचर थे, मैथ्स टीचर, और काफी बार उन्होंने उनका मेंशन किया है कि मेरे बहुत अच्छे मैथ्स टीचर्स रहे हैं. इन्होंने काफी स्पेशल रीजनिंग में काम किया है, बहुत सारे मैथ्स के ब्रांचेस में काम किया है, एजुकेशन में काम किया है. सो उनका ये कहना है कि इमेजिनिंग व्हाट इज, सो कोई आप में से कोई वॉलंटियरली कहना चाहेगा कि क्या कह रहे हैं ताता? इमेजिनिंग व्हाट व्हिच इन्वॉल्व सीइंग व्हाट इज सेड. इन सेंटेंसेस का कुछ मतलब बताना चाहेंगे या आगे बढ़ना है? Yes, good morning, sir. Yes, ma'am. Sushant sir, here it is the reference of the child when they imagine that what is circle. So with circle, they can relate it. If the teacher instruct the circle, you can see a ball, but they will imagine what is a circle. Then they can imagine, okay, my mom wears something that is maybe bindi or some bangle. Then next is constructing, which involves seeing what is drawn or seeing what is seen. Now here also it can be an instruction by the teacher or by the parent, or the child after imagining will construct actually what is a circle. So they can, by the pictorial representation, they can do, okay, when we tell them to, okay, you take a paper, tear it out, but it should not have any side. So then they can construct a circle, or by a thread we can tell them, or by a drawing. Okay, sir. Then figuring is which involves drawing what is seen. So then after constructing in their mind or in a maybe in their notebook or in their file, then they can draw it and they can tell us, or they can tell their parents or any instructor, or with their friends they can do that this is the thing with what I think I have imagined, constructed, and this is the end product, and we can relate it with any shape or anything. So thank you. Thank you, sir. Thank you, Seema ma'am. Thank you. It was very nicely explained. Anybody wants to add anything what Seema ma'am has said, or we should go ahead? If anybody is not want to add, then we can move ahead. Let's move ahead. I think Seema ma'am's explanation was quite sufficient. So there are researchers who are working in spatial reasoning. They have also listed down the things which are counted under spatial reasoning or spatial skills. So first, just I missed a few reply. I'll just read them. So Balakrishna sir is ability to connect object in real life. Yes, sir. Bhushan sir is thereafter child will have actual sense of object. Yes. Yes, Mamta ma'am, you want to say something? No. Reflecting the relating the visualization of object to the things familiar to them or seen earlier. Yes, yes. All points are very nicely written, and yeah, thank you. Children start looking for the word as space full of object. Yes, yes. Thank you, Sunil Kumar sir. I like the way you all are replying and interacting. Thank you for that. So let's read what things are listed in spatial reasoning, spatial scheme. So first is locating. तो उसमें कोई ऑब्जेक्ट है वो प्लेन में अगर कहाँ पे है उसका लोकेशन हो सकता है. ओरिएंटिंग. सो ओरिएंटिंग आप सभी जानते हैं, रोटेशन करके भी वही ऑब्जेक्ट वैसे ही दिख रहा है कि नहीं, वो हो सकता है. डीकम्पोजिंग, रिकम्पोजिंग, किसी ऑब्जेक्ट के टू पार्ट करना और उसे एक साथ लाना. शिफ्टिंग डायमेंशंस, जो अभी डायमेंशंस की बात की है बहुत लोगों ने. सो शिफ्टिंग डायमेंशंस में अगर मेरा स्क्वायर यहाँ पे है, वो स्क्वायर से हम क्यूब तक कहाँ से कैसे जा सकते हैं, वो अगर स्क्वायर का एक्सटेंशन क्यूब में कैसे हो सकता है उसको समझ पाना. बैलेंसिंग. सो बैलेंसिंग का ये है, सो मैंने जो मीनिंग लिया है वो अलजेब्राइकली लिया है. सो हम जब इक्वेशन बैलेंस करते हैं इक्वल टू साइन के हिसाब से, और इक्वल टू साइन के साथ एक लेफ्ट हैंड साइड पे कोई एक क्वांटिटी है, राइट हैंड साइड पे क्वांटिटी है, वो दोनों इक्वल होनी है. तो उसके लिए जो बैलेंसिंग लगता है उसमें भी बहुत सारा स्पेशल रीजनिंग लगता है. हम कुछ आज रिसर्च पढ़ेंगे, उसमें साथ में पढ़ेंगे, उसमें वो अलजेब्राइक जो पॉइंट है वो सामने आएगा. डायग्रामिंग, जो अभी बात हुई कि जो देख रहे हैं वो या फिर जो बताया गया है उसके डायग्राम निकाल पाना.
सिमेट्राइजिंग, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट निकाल पाना। नेविगेटिंग, जो हम यूजुअली हम आजकल गूगल मैप्स यूज करते हैं कि नेविगेट करके लोकेट करना। ट्रांसफॉर्मिंग, सो एक स्पेस से दूसरे ट्रांसफॉर्मिंग इज बिट थोड़ा मुझे जो पता है ट्रांसफॉर्मिंग वो थोड़ा हायर लेवल है, अगर आपको कुछ पता होगा तो आप मुझे बता सकते हैं। कंपेयरिंग बिटवीन जो दो शेप्स। स्केलिंग इज अनदर पॉइंट आई विल से कि वो जो फ्रैक्शंस वगैरह में रेशियो प्रोपोर्शन में कि किसी चीज को किसी क्वांटिटी को दिया है कि लेट्स से मैं 1 कप चाय के लिए 2 स्पून ऑफ शुगर यूज करता हूँ, तो 10 कप चाय के लिए कितना यूज करूंगा। तो वो जो स्केल कर रहे हैं वो 2 को स्केल करके 5 टाइम्स कर रहे हैं, उसके लिए। सेंसिंग, विजुअलाइजिंग, और ये सारी चीजें हमारी अभी बहुत सारे पॉइंट्स अब पहले से कवर हो चुके हैं। So let's anybody want to add anything or anybody want to add their experiences? Regarding scaling, sir, what Yes, I sir. understand is there is one activity in class 5 textbook also that magnifying the same figure with equal with the same proportions. With equal, Yes. is scaling. I understand. I believe. I want to know from you. Yes, But sir, yes. Yes, sir. Sushant sir, I want one word also. कोरिलेशन एस्टेब्लिशमेंट, जो जितना आप लोकेशन, ओरिएंटेशन, डिकम्पोजिशन, शिफ्टिंग जो भी है, इस सभी में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उसके मेंटल स्टेटस में। Okay, coordination between mental status and all these activities, interrelation between these activities also. Yeah, thank you. Sensing, visualizing, scaling, इस Yes. सभी में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। Yeah, thank you. Very important point. Coordination भी बहुत जरूरी है। Idea of similarity and scaling. Yes. Sir, sir, decomposing and recomposing, and the difference between comparing. Now, these two terms means decomposing and recomposing, as said by you, ki we can reconstruct anything. We can dismantle any shape. Maybe when we give a clay to the child, we told you make a square, then reconstruct it if you can make it to triangle or rectangle. Am I correct, sir? Yes, sir. Yes, yes, Okay. yes, ma'am. Sorry. Then, sir, transforming. What is the difference? Now, please, sir. Transforming is again, I think if we give a rectangle shape or a paper, okay, we tell, okay, now you take this a paper and draw a rectangle or cut it this paper into a rectangular form. Okay. Now transfer it into a square form, or can any number of squares can come in this rectangle? Is it transformed? So, very nice observation. First of all, decomposing और recomposing में एक चीज हो रही है। So एक थोड़ा अगर हायर लगा तो प्लीज बता दीजिए मुझे। Decomposing और recomposing में हम जो एरिया है उसे मेंटेन कर रहे हैं। वो एरिया या फिर जो भी एक क्वांटिटी होगी डिकम्पोजिंग रिकम्पोजिंग के साथ में लाने के बाद हमारी जो क्वांटिटी होगी, एरिया हो या शेप, लेट्स से पेरीमीटर हो, या अगर हम थ्रेड को डिकम्पोज कर रहे हैं 10 पार्ट में वापस ला रहे। ट्रांसफॉर्मिंग में क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्मिंग में एक अलग क्वांटिटी के हिसाब से हम बदल रहे हैं। मतलब हमारा जो बेस जितने डिकम्पोज करने के बाद हमारे जो बाकी चीजें होंगी उनका वॉल्यूम उतना ही होगा। लेट्स से मैंने पानी लिया है 1 लीटर, उसको 100 ml के इसमें रखा, वो इसके लिए वर्ड होगा, आई एम थिंकिंग अबाउट द वर्ड, मुझे पता है लेकिन वो अभी मिल नहीं रहा है मुझे। वो सारी चीजें वैसे के वैसे मेंटेन हो रही है उतनी क्वांटिटी में। ट्रांसफॉर्मिंग में वो चेंज होता है। ट्रांसफॉर्मिंग में जो ओरिजिनल क्वांटिटी है वो क्वांटिटी भी चेंज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। Yeah, anybody want to add? The same thing ना कि अगर हम उसको एक शीट देख के बोलें this is rectangle, now tear these sheets and form different squares, so वो rectangle तो हट ही जाएगा ना, so quantity will increase, maybe 2 squares sheet they can form. So Okay. or if you give an apple and tell her to okay now cut it और उसी shape में हो तो they can form. So this again is coming under decomposition and recomposition. So transformation का एक चीज मुझे पता है, मैपिंग। So दो हायर मैथ्स में है, थोड़ा सा बेयर कर लिए मुझे, कि 2 प्लेन है और 2 प्लेन्स के बीच में मैपिंग है कि यहाँ से मैं अगर स्क्वायर ले रहा हूँ, यहाँ पे जाके वो ट्रायंगल बन रहा है, so उसे ट्रांसफॉर्मिंग कहेंगे। So 3D वगैरह का जो
कंसेप्ट आता है, उसके बीच में मैपिंग आता है 2 डायमेंशनल स्पेस और 3 डायमेंशनल स्पेस के बीच में का, सो वहां पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। सो मुझे पता चल रहा है कि 0 जो है मेरा, ये किसी उनके 0 पे मैप हो रहा है। ये जो 1 पॉइंट है वो हाफ पे हाफ पे जा रहा है। सो वहां पे वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सो वो वाला ट्रांसफॉर्मेशन मैंने एटलीस्ट समझा है। अगर सेशन के एंड तक हमें कुछ और एग्जांपल मिलता है ट्रांसफॉर्मेशन का हम ये लेवल के लिए, तो वो भी लिख देंगे, ठीक है? Okay, thank you sir for clearing that out. Thank you. सुशांत जी, हाँ, यस संजीव सिंह। ये अगर हम लोग सीधे शब्दों में समझे तो जैसे एक रीम पेपर है, आप हर बच्चे को एक शीट दे दें, वो डिकम्पोजिंग हो गया और कलेक्ट वापस कर ले तो रिकम्पोजिंग हो गया, पूरा रीम आपके पास आ जाएगा। यस यस। यदि किसी बच्चे को आप एक पेपर दे दें और कहें कि इससे एक प्लेन बनाओ, तो हो सकता है उसको फोल्ड करके वो कुछ उसमें से काट भी दे, कुछ छांट भी दे स्क्वायर पीस बनाने के लिए। दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। या और वो जो बचा हुआ जो वो हम फेंक दें और सिर्फ वो उन्होंने बनाया हुआ स्क्वायर रखे, तो ये दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। Kuheli ma'am, want to add something because your mic is on, that's why I asked. No sir, just as sir told the same thing. Okay. Like if you change it from one shape to other, 2D to 3D, and some part is gone, we can consider it to be transformed. That's what. Thank you Seema ma'am, Sanjeev sir and Kuheli ma'am. So when I was going through textbooks, so let's explore some chapters of our textbook. So what I got to know from our textbook where spatial reasoning is directly involved. So I came across this chapter. You can add some other chapters since you have been teaching since years. आपके पास बहुत ज़्यादा experience है और आपको पता है कि यहाँ पे भी spatial reasoning use हो रहा है। सो मेरे पास मैंने जो चैप्टर्स देखे हैं उसमें तो एनसीईआरटी के क्लास 1 का शेप्स एंड स्पेस, 7 चैप्टर था मेजरमेंट, 10 चैप्टर पैटर्न्स, और टीचर्स नोट्स में काफी अच्छे से एक पार्ट दिया है स्पेशल रीजनिंग के लिए। क्लास 2 में फर्स्ट चैप्टर है जो व्हाट इज लॉन्ग एंड व्हाट इज राउंड, उसके बारे में वो एक्टिविटी भी है कि वो बैग में कुछ चीज है उसको सिर्फ डिस्क्राइब करना है आपको सिर्फ टच करके। सो वो एक स्पेशल रीजनिंग के पास जाती है। फिफ्थ चैप्टर है पैटर्न्स, वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर, आई लव दैट चैप्टर। सो पैटर्न कैसे बनते हैं और किस तरीके से बच्चे उसे रोटेट करके पैटर्न बना रहे हैं, वो भी अच्छा है। एंड फुटप्रिंट्स, आई थिंक फुटप्रिंट वाज काइंड ऑफ एक्सटेंशन टू पैटर्न, आई फेल्ट दैट, मे बी आई माइट बी रॉन्ग, बट आपको किसी को और भी कुछ पता हो तो आप ऐड कीजिए, क्योंकि आपके असाइनमेंट में टेक्स्ट बुक एनालिसिस है आज, कि आपको टेक्स्ट बुक में जाके देखने हैं कि यहाँ पे स्पेशल रीजनिंग का कौन सा पार्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, कौन से चैप्टर में। एक आधा चैप्टर लेना है आपको और उसके बारे में एनालिसिस लिखना है। सो सम एग्जांपल्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक। सो ये है शेप्स में का, मैच द शेप्स ऑफ द सेम साइज। सो सो विच स्पेशल स्किल्स आर इंक्लूडेड इन दिस टास्क। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या लगता है कौन से स्पेशल स्किल्स हमने जो अभी देखे उसमें से कौन से यूज हो रहे हैं यहाँ पे। और आई विल सजेस्ट कंपेयरिंग ओरिएंटेशन। यस ज्योति मैम, नीता मैम, ओरिएंटेशन, शिफ्टिंग डायमेंशन, लोकेटिंग, ओके, शिफ्टिंग डायमेंशंस, शिफ्टिंग डायमेंशंस, सिद्धार्थ सर, हाँ, dimensions ka probably scaling also, if sorry, you come from down. Again orientation yes, sorry, एक slide में आगे sensing, okay, yes, all these points are yes. So ये सारी चीजें मैं इसलिए ले रहा हूँ कि हमें तो बच्चों को नहीं बतानी है कि आप ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं, लेकिन आपके बैकग्राउंड में अभी जब भी आपको उसके पीछे का रीजन पता होगा ना, तो सिखाने में आपको भी ज्यादा हेल्प होगी और ज्यादा एक अच्छे से एक आ पाएगा। यस, सो इसके आगे है ये उसके आगे का एग्जाम्पल है, इसमें थोड़ा सा कुछ तो फर्क है। इसमें क्या फर्क किया है उन्होंने, ये वाला एग्जाम्पल था, यहाँ पे shapes are different sir, shapes are different. yes, shapes are different and orientation is different, orientation is different and scaling का किसी ने नाम दिया, यहाँ नीचे से देखने से 3 triangles, हाँ, there is scaling.
यस यस, तो यहाँ पे जो थे वो एक ही ट्रायंगल को स्केल किया गया था। हाँ हाँ। और यहाँ पे है जो डिफरेंट शेप्स है यहाँ पे, तो स्केलिंग वाला चीज है वो यहाँ से यहाँ पे हट चुका है, यहाँ पे सारे के सारे डिफरेंट शेप्स है। हाँ, सो ये तीसरा और एक एग्जांपल दिया मैंने। रूही मेड 2 different traces of same bowl. How did Ruhi keep the bowl to get 2 different traces from it? Look for other things like Ruhi's bowl which can give many different traces. So यहाँ पे कौन से skills यूज हो रहे हैं आपके हिसाब से? Estimating, sensing, Visualization. Yes, yes. estimating, sensing, visualizing, then Comparing. Wow. Decomposing, sir. Orientation. Yes, yes. Decomposing will go with it, sir. Decomposing नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे shifting diamond. नहीं. और कुछ आपको कुछ और लग रहा है? सर एक ही conversion of 3D to 2D. thing is there. Projection Can we of say, no, can we say there is scaling in the same object from bottom to up? There is scaling. Very nice. 3D to 2D. Diagramming is there. Diagramming is also there. Very nice. So I am also like I have इसमें से कुछ पॉइंट तो मैंने खुद भी नहीं सोचे थे, मैंने सोचा थोड़े बहुत ही होंगे। थैंक यू, ये होता है एक्सपीरियंस का। Maybe away from the list, sir. Multiple visualization of the object. Multiple visualization. very beautiful point. Multiple visualization कि एक ही ऑब्जेक्ट के कितने सारे ट्रेस हो पा रहे हैं यहाँ पे। और वो 3 डायमेंशन टू 2 डायमेंशन वाला पॉइंट भी बहुत अच्छा था, सारे पॉइंट बहुत ही अच्छे थे। किसी को ऐड करना है या फिर आगे जाते हैं? ठीक है, मैं आगे जाता हूँ। हम एग्जाम ये है माधव वांट टू मेक अ पैटर्न। हाँ यस भूषण सर, ठीक है, उनका माइक ऑन है शायद। माधव वांट्स टू मेक अ पैटर्न ऑन अ गेट यूजिंग वन डिजाइन। कैन यू गेस व्हिच ऑफ द दिस कैन नॉट बी फॉर्म विद दिस? तो यहाँ पे कौन सा स्पेशल स्किल यूज हो रहा है और यहाँ पे क्या? सिमेट्राइजेशन, यस। Orientation. Yes. Visualizing, sensing, visualization, symmetrization, diagramming. Yes, yes. All these. Yes, yes. All of them. Shifting dimension. Shifting dimension. Yeah, because हमें तो ये एक्चुअल में दिख रहा 2D में है ये शेप, लेकिन वो जब भी बच्चे इमेजिन करना चाहेंगे वो डिजाइन हमें इमेजिन करना है कि ये इसका गेट बनेगा तो ऐसे ऐसे दिखेगा। Orienting, then only the figure changes. Orienting. Yes. Decomposing and recomposing. Very nice. Yes, decomposing and recomposing is also here. क्योंकि जो भी सारे डिजाइन है हम उन्हें अगर अलग अलग करेंगे हमें हमारा ओरिजिनल पीस मिल रहा है कि नहीं, वो भी बच्चे। और इन सारी चीजों में ना yes Bhushan sir, transformation is there. ट्रांसफॉर्मेशन, या वी कैन से ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज एक शेप पूरा का पूरा चेंज होके यहाँ पे थोड़ा सा डिकम्पोजिंग और ट्रांसफॉर्मेशन मर्ज हो रहे हैं अभी के लिए। पूरा का पूरा एक शेप ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और एक चीज है कि इसमें मल्टीपल कॉपीज है एक चीज की, मल्टीपल कॉपीज से हम जो नई डिजाइन से वो बना रहे हैं। सो मैं कुछ पॉइंट बोल रहा था, मैं थोड़ा सा रह गया वो पॉइंट। लेकिन मैं कह रहा था कि अगर ये आप एक्टिविटीज जब भी बच्चों के साथ करेंगे, सो जैसे आपने कहा है कि बहुत सारे बच्चे कैसे सोच रहे हैं उसके बारे में कभी क्वेश्चंस पूछिए और उसका रिकॉर्ड रखिए अगर आपको पॉसिबल हो रहा है। आई नो आपके पास बहुत टाइम कम होता है, बहुत सिलेबस और बाकी सारी चीजें भी आपके साथ होती है, असाइन होती है, बट अगर कभी पॉसिबल हो तो बच्चे कैसे सोचते हैं इन पैटर्न्स के बारे में और उनके थॉट प्रोसेस क्या है। एंड बहुत सारे सरप्राइजेस होते हैं, जैसे मैंने बहुत मिडिल स्कूल में या अंडरग्रेड या हाई स्कूल में देखे हैं, बहुत सारे सरप्राइजिंग वे में बच्चे काफी सारी चीजें उनको पता होती है और मल्टीपल वेज ऑफ सॉल्विंग इट। सो वो आप मैं चीज एक कहना चाहता था। ये ज्योति मैम वांट टू से समथिंग। Lakshmi Priya ma'am has also said imagination, middle arrangement cannot be done. Yes,
One also bottom left also cannot be done. Bottom left, yes, bottom left is also because एक ही side का उसे जो branch है वो Side is missing. Yeah, one branch is missing. Yes, yes. Okay. So अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं. कुछ पॉइंट्स में चैट में के देख लेता हूँ. विजुअलाइजेशन, सिमेट्राइजिंग, प्रीति मैम कह रही हैं, दीपक सर कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, यस. विकास सर कह रहे हैं रिकम्पोजिंग, डिकम्पोजिंग, एब्सोल्युटली. लक्ष्मी प्रिया मैम का रिप्लाई पर इमेजिनेशन एंड मिडल फिगर कैन नॉट बी डन. सो यहाँ पे आगे जाके स्पेशल रीजनिंग क्यों, अभी तो ऑलमोस्ट आंसर मिल चुका है हमें, स्पेशल रीजनिंग क्यों जरूरी है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं कि आपके टीचर्स नोट्स में ये स्टेटमेंट है, चिल्ड्रन हु डेवलप अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप आर बेटर प्रिपेयर्ड टू लर्न नंबर्स एंड मेजरमेंट डाटा एज वेल एज फॉर द एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल थिंकिंग. सो ये जो एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल थिंकिंग है वो मोस्टली अलजेब्रा जब भी सीखते हैं तभी होता है, जब भी हमें ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा है, हम किसी अननोन चीज को एक्स करके अज्यूम कर रहे हैं. we say कि let's assume so and so quantity as x. So वहाँ पे वो abstract चीज स्टार्ट हो जाती है और वो सारी चीजें डेवलप होने के लिए स्पेशल रीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. Concepts like number sense, algebraic thinking, geometry are also dependent on development of special reasoning. So researchers सालों से जो काम कर रहे हैं, अभी NCF में भी स्पेशल रीजनिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है. आपके टेक्स्ट बुक में भी आप अगर कंपेयर करेंगे लास्ट टेक्स्ट बुक और ये टेक्स्ट बुक, उसमें आपको एक डिफरेंस दिखेगा कि स्पेशल रीजनिंग के ऊपर कितना ज्यादा थोड़ा सा एम्फेसिस बढ़ गया है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर्स. और ये सारी जो चीजें हैं, नंबर सेंस, अलजेब्राइक थिंकिंग, ज्योमेट्री, ये सारी बहुत सारी अलजेब्रा के बारे में देखेंगे कि अलजेब्रा कैसे काम करता है. ज्योमेट्री तो आप सभी जानते हैं, विजुअलाइजेशन के सिवा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. इन सारी चीजों की वजह से स्पेशल रीजनिंग जरूरी है. कुछ रिसर्चर्स है, उन्होंने बहुत सारा काम किया है. जैसे मैंने कहा कि अकॉर्डिंग टू द बुक स्पेशल रीजनिंग इन अर्ली ईयर्स बाय ब्रेंट डेविस एंड स्पेशल रीजनिंग स्टडी ग्रुप, इन दोनों के जो इंफॉर्मेशन है मैं आपको श्रीनिवासन सर के थ्रू भेजने वाला हूँ सेशन के बाद. आप अगर टाइम मिले तो प्लीज उनका रिसर्च देखिए, बहुत ही सुंदर रिसर्च किया है. थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि रिसर्च का जो टर्मिनोलॉजी होता है वो कभी कभी पढ़ने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है. उस केस में आप एक काम कर सकते हैं कि आप वो चीजें हाईलाइट करके रख देंगे और शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, किसी के साथ, हमारे ग्रुप में से किसी के साथ, मैथ एजुकेशन. नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड स्पेशली. ये जो बुक है उन्होंने तो बहुत सारा रिसर्च किया है सालों तक. उन्होंने कहा है कि नंबर्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी स्पेशल रीजनिंग की वजह से होता है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डेवलप दैट मेंटल नंबर लाइन, कि जब भी अगर मुझे नंबर्स के बारे में कहा जाता है कि 6+4 इज ओरली अगर पूछ रहा है कोई, आई विल, अगर मैं बच्चा हूं, उनका कहना ऐसा है कि अगर मैं बच्चा हूं तो मैं राइट हैंड साइड 6 के राइट हैंड साइड 4 ब्लॉक्स जाऊंगा, और उसके लिए मुझे स्पेशल रीजनिंग जरूरी है. और अगर जैसे जहां पे इंटीजर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, और तभी लेफ्ट हैंड साइड में मुझे जाना है, नेगेटिव की तरफ जाना है कि नंबर छोटा है तो लेफ्ट के तरफ होगा, बड़ा है तो राइट के तरफ होगा. ये जो रीजनिंग है वो भी स्पेशल रीजनिंग की वजह से आती है. वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो स्पेशल रीजनिंग की वजह से आती है. Most of the students develop notion of mental number line, which is help them to problems of addition subtraction. In longitudinal study मतलब सालों तक एक ही ग्रुप के साथ सालों तक किया गया स्टडी. कि मैंने कुछ स्टूडेंट्स लिए अभी 2nd ग्रेड के, उनका 2nd ग्रेड में स्टडी किया, 3rd ग्रेड में स्टडी किया, 4th और 5th में भी किया. एक ही ग्रुप के साथ मैं सालों तक अगर काम कर रहा हूँ, उसे लॉन्जिट्यूडिनल स्टडी कहते हैं. In longitudinal study, it is evident that students who develop spatial reasoning perform well in mathematics of higher classes. Anybody want to add anything from till here? Any discussion, any point you want to say which you think very important is and might have not got covered? या फिर मैंने कुछ point बोला है उसको आपको elaborate करना है? Bhushan sir, I am well convinced with 3rd sentence because abacus is related to it where children perform addition and subtraction orally. Thank you sir. Yes sir, very nice point. Anybody else want to add anything or should I move ahead?
सर numbers are represented spatially. ये थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे क्या सर? हाँ, so I wanted actually हाँ, thank you रंजीत सर, ये एक्चुअली इम्पोर्टेंट है। नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड स्पेशली, उसमें का एक एग्जांपल लिया है मैंने अभी के लिए। एक चीज थी कि जहाँ पे वो नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड स्पेशली वाला जो टेक्स्ट है वो काफी कॉम्प्लेक्स था पढ़ने के लिए, सो आई हैवंट इन्वॉल्व दैट टेक्स्ट हियर। लेकिन मैं एक चीज कर सकता हूँ आपके लिए कि वो जो पार्ट है उसका एक स्क्रीनशॉट में श्रीनिवासन सर के साथ शेयर करता हूँ। नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड स्पेशली, उसके ऊपर एक टेक्स्ट है, वो पूरे बुक, एक बुक है जो ये बुक मैंने दिया है। सो उसका उनका कहना है कि नंबर्स का जो सेंस हो रहा है आपके माइंड में, जो नंबर्स है, आप यूजुअली तो काउंटिंग ऐसे करते हैं बच्चे, लेकिन अगर एक लेवल के बाद ओरली जब भी करना होता है, सो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है मुझे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया 6 + 4 = 10, सो वो 10 अगर सोच रहा हूं मैं तो 7, 8, 9 और 10 4 ब्लॉक्स आगे गया, वो भी राइट साइड में। सो वो सारे रिसर्च उनके रिसर्च के हिसाब से है, और एक्चुअली मुझे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा था वो लैंग्वेज, दैट्स व्हाई आई एक्सक्लूडेड दैट। यस पवार सर, हाँ पवार सर, हाँ बोलिए। ये एग्जांपल फॉर रिसर्च जैसे कुछ मैंने क्लास 4-5 में है, ऐसा भी है कि हाफ टर्म में सेम दिखेगा, 1/4 टर्म में सेम दिखेगा, हाफ टर्म में 2 डिजिट नंबर जैसे 1 है तो हाफ टर्म करेंगे तो 1 रहेगा, 8 है तो उस तरह से कितने डिजिट 2 का बनेंगे, 3 का बनेंगे, 4 का बनेंगे। तो ये भी एक इसमें आप रिसर्च कर रख सकते हैं टर्न वाली, जो हाफ टर्म करावेंगे ना। हाफ टर्म मतलब किसी नंबर का हाफ करना है तो कहाँ तक आएगा? हाफ टर्न No, rotating on the plane by rotating 90 degrees like that. Okay. 90 degree, 180 degree like that. I am suggesting. Turn अगर करेंगे तो भी सेम दिखेगा। I was not aware of that. Yes. जैसे H है अल्फाबेट, जैसे 190 degree, again 180 degree, it become H. That is also the part of research, है ना? जैसे H है आपका। Yes, completely agree. Ranjit sir, I will try. Let me just. Yes, sir. Actually, I also want to ask you one question. Means I am thinking numbers spatially. तो मेरे दिमाग में एक आया था, क्या is it right? Please tell me, sir. Yeah. कहिए ना। 8 + 5 = 13. So when adding 5 to 8, some child may break 5 in 2 pieces. That is 2 and 3. So child will add at first 8 + 2. Mentally he is doing 8 + 2 10, and then he adds 3, and so 8 + 5 mentally child does like this, 8 + 2 + 3, thus it is 13. Is it that is what thinking spatially with the numbers? It can be included, yeah, because यहाँ पे जो है बच्चों को एक अंडरस्टैंडिंग है कि 10 जो है उसके साथ डील करना बहुत इजी हो रहा है। रंजीत सर आपने जो अभी कहा ना, दैट इज न्यूमरेसी, यही मैं फर्स्ट डे भी कहा था, एप्लीकेशन है वो। 8 + 5 13 होता है, दैट इज प्योर मैथमेटिक्स। अगर 8 + 1 + 4, 8 + 2 + 3, 8 + 3 + 2, ये जो अप्लाई कर रहे हैं दैट इज न्यूमरेसी, ये एप्लीकेशन है हम लोगों का। रंजीत सर, यू आर वेरी करेक्ट। तो स्पेशल थिंकिंग विद द नंबर्स, ये मुझे सुशांत सर को पूछना है। So I will do one thing. I will share that part of that paper and that book with all of you. अभी के लिए थोड़ा आगे बढ़ते, because I can see it's already. Yes, sir. Sir, I want to add something, sir, in this regard. Numbers are represented spatially, which I mean, sir, actually in class 3 onwards, sir, actually हम बच्चों को देते हैं कि write in figures. A number is written in word, suppose 356 ये word में है, बच्चे जब उसको न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स में लिखते हैं, हम कमांड देते हैं write in figures. When the students write a words in that means a number in words in figures, that means in numerical representation, I think that is actually spatial representation of numbers.
सपोज वन के लिए लैंग्वेज वेरी कर सकते हैं सर, इंग्लिश में हम वन अलग लिखते हैं, हिंदी में अलग लिखते हिंदी में हैं। अलग लिखते हैं, yes. ये जो नंबर्स को हम लिख रहे हैं अलग अलग फिगर के साथ, वो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी नंबर्स, I think that actually the meaning of this sentence. What do you feel, sir? Yeah, Actually, space is there. So, and sir was also telling, class 5 में sir, does it look the same? एक chapter है, वहाँ symmetry है. Question है कि कौन कौन सा digit symmetrical है. You can draw a line of symmetry at least for those digit. And sir जैसे बोले कि 2 digit, 3 digit number which will look same after half turn in that way. Suppose 8 is a digit. It will look same after half turn, that is 180 degree turn. In that way, sir. From a 4-digit number, like some 4-digit number, which can will that means which will again look same after half turn. So a student can write 6009. In that way, space is coming there also. So in that way, that means the numbers are represent, especially ये जो मतलब sentence है, ये उसको satisfy कर रहा है सर। Yes, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन जो है, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि हमने ये भी देखा कि जो चीजें कही जा रही है वो लिख पाना, उसे रिकंस्ट्रक्ट कर पाना, या सो दैट इज आल्सो स्पेशल रीजनिंग। वेरी थैंक यू फॉर दैट पॉइंट। ऑल्सो मैं पांडे सर के पॉइंट से भी एग्री हूँ कि न्यूमरसी और स्पेशल रीजनिंग के बीच में एप्लीकेशन उन्होंने का पॉइंट लिया। सो एक्चुअली बहुत हम अभी भी रिसर्च है इस पे कि ये दोनों चीजें कैसे इंटरनली कनेक्टेड है और कैसे इंटरडिपेंडेंट भी है। सो वो सारी चीजें आ जाएंगी, तो थोड़ा सा वो थोड़ा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अभी के लिए टॉपिक, बट आई विल शेयर विथ यू एंड आई विल बी इन टच विथ ऑल ऑफ यू। सो मैं ईमेल वगैरह शेयर करूंगा, सो उसमें आप लिख सकते हैं मुझे, और इट विल बी वेरी न्यू एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज सिंस आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स के साथ काम करने का, इट विल बी वेरी नाइस फॉर Sushant sir, may I add something? Numbers are represented specially if we, by all my colleagues, if we read the ESPL theory, then it will be properly understood. Because there is that the child then experience after his imagination, he experience, then he represent it, pictorial representation, and then he gives the symbol to it. For example, for 2 objects, then he gives the symbol, and that symbol is the formation of 2. You draw a curved line, then you draw a sleeping line. So actually, that is the numbers represented, especially when we undergo and with the ESPL. Thank you, sir. Thank you, Seema ma'am. Yeah. There is one concept also, sir, that the place value chart. The number gets its value according to the place. According to the place, yes. For example, 3 digits are given. Asked to make form different numbers. By interchanging their places, we are forming different numbers. Yes, yes. So largest number possible with these 3 digits, smallest number possible with these 3 digits. Yes, yes. Yes, yes. Very nice. Actually, I am also getting so much insight from this session. Actually, thank you so much. I will definitely share that point with all of you. So let's move ahead. So as I said कि अभी हम लोग एक research reading देखेंगे. We will read some part of one research paper based on special reasoning. So इसके एक pattern follow करेंगे इसके लिए कि slide will show a screenshot of a paper. We will read that slide and I will give 2 minute or 1 minute pause right now to write down some highlight points in that slide. So आपको अगर स्लाइड दिख रहा है, हम साथ में पढ़ेंगे, उसके बाद में 1 मिनट के लिए पॉज लूंगा और वहां पे आपको जो हाईलाइट पॉइंट लगे कि इसमें ये चीजें इन्होंने हाईलाइटेड है, ये इनके बारे में लिखना है, वो आपको लिख के रखनी है आपके साथ। उसके बाद मैं 4-5 स्लाइड के बाद हम डिस्कशन के लिए ओपन करेंगे सेशन। सो चैट बॉक्स में या आप अनम्यूट करके खुद को बता पाएंगे। सो yes, Ankit Vatsa, yes. Okay, nahi, I think that was accidental. We will follow this pattern for 4-5 slides and वो पेपर आपको मैं भेजूंगा अभी। आपके एक पर्सनल जो इंडिविजुअल असाइनमेंट है उसमें शायद आप अगर वो पेपर पढ़ के कुछ पार्ट स्किप कर सकते हो, उसमें का जो स्टैटिस्टिकल है काफी, वो पार्ट स्किप करके आप छोटा सा एक समरी लिखने का एक असाइनमेंट होगा, अगर आप ऑप्शन है आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं वो लास्ट में।
So this paper is Importance of Special Reasoning in Early Childhood Mathematics by Kelly Rich and Jonathan Bredenfer. So let's start this. So स्पेशल रीजनिंग अभी के लिए मैं पढ़ रहा हूँ ये स्लाइड, उसके बाद 1 मिनट का पॉज दूंगा जैसे कहा गया है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे उस 1 मिनट में आपको जो पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, हाईलाइटिंग लग रहे हैं, वो आपको सिर्फ नोट डाउन करने हैं. स्पेशल रीजनिंग. स्पेशल रीजनिंग इज स्ट्रांगली कोरिलेटेड विद अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स. जो 5,7 है वो रेफरेंस है, वो इसके एंड में है कि ये जो स्टेटमेंट है वो भी किसी रेफरेंस के हिसाब से आ रहा है, किसी ने रिसर्च किया हुआ है, इसीलिए ये स्टेटमेंट ये कह पा रहे हैं. स्टूडेंट हु परफॉर्म बेटर इन स्पेशल टास्क आल्सो परफॉर्म बेटर इन टेस्ट ऑफ मैथमेटिकल एबिलिटीज. स्पेशल रीजनिंग इन्वॉल्व्स ए composing and decomposing shapes and figures, visualization, or the ability to mentally manipulate, rotate, twist, or invert pictures or objects. Special orientation, or the ability to recognize an object even when the object's orientation is changed. And special relation, or the ability to recognize special pattern, to understand special hierarchies, and to imagine maps from verbal descriptions. Recent evidence indicates that special reasoning training can have transfer effect on mathematics achievement, particularly on missing term problems. Example, 7 plus the missing term is equal to 15, which are important in developing algebraic understanding. So मैंने algebra का जो point कहा था यहाँ पे आ रहा है. In addition, special reasoning skill and mathematical competency are directly related to each other. Learning with special reasoning tasks improves students' ability in science, technology, engineering, and mathematics fields. And there is strong link between special reasoning ability and geometry, where strong visuospatial skills predict how well students will complete 3D geometry tasks. As educators become more aware of the need for special reasoning tasks, it is important to recognize the critical role mathematical modeling plays in overall development of mathematical thinking. So अभी के लिए मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूँ. आपको जो important point लगे, आपको सबको I hope सबको slide clear है और दिख रही है. आपको जो भी important point लगे वो आप नोट डाउन करके रखिए, और जब भी हम डिस्कशन के लिए ये पॉइंट्स लाएंगे तभी आप वो डिस्कस कीजिए जो भी आपको इम्पोर्टेंट होता है. सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 1 मिनट का टाइम. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. किसी को अगर एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो, और शुड आई मूव? अगर चाहिए रहेगा तो मुझे बोल देना कि थोड़ा सा पीछे. So just a minute. हाँ, ओके, थैंक यू. वैसे आपको पेपर भेजा जाएगा आपके पास. ये पूरा पेपर मैं अभी श्रीनिवासन सर को भेजने वाला हूँ जैसे सेशन होने वाला है, उसके बाद आप खुद पढ़ सकते हैं. Done, sir. ओके, थैंक यू. तो ये जो नेशनल रिसर्च काउंसिल की बात हो रही है वो यूएस के हो रही है, लेकिन मैं इसलिए ये पॉइंट इन्वॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि जो एक काउंसिल और जो कोई भी डिसाइड करते हैं सिलेबस, उनके हिसाब से भी क्या उन्होंने भी कैसे रिकॉग्नाइज किया है स्पेशल रीजनिंग को, उसके लिए पॉइंट इन्वॉल्व किया है. इट्स नॉट रिगार्डिंग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, बट
सिर्फ रिलेट कर सकते हैं, इसलिए ये पॉइंट इन्वॉल्व किया है। ये कुछ पार्ट पढ़ रहे हैं हम पेपर का, पूरा पेपर नहीं पढ़ पाएंगे एक ही सेशन में। द नेशनल रिसर्च काउंसिल रिपोर्ट अर्जेस educator to recognize the importance of developing special reasoning skills with students across all areas of mathematics, and the National Council of Teachers of Mathematics suggests more special reasoning be integrated into elementary mathematics curriculum to promote relational thinking skill. Mathematical modeling may be a key component to help students explain their thinking when representing algebraic concept. Mix and Cheng, ये दो रिसर्चर की बात हो रही है यहाँ पे, found that students with strong spatial reasoning skills do well in mathematics. तो ये जो 22 और 23 है ना, ये रेफरेंसेस है। आप जब भी पेपर पढ़ेंगे वो आपको पेपर का नीचे जो रेफरेंस होगा 22 नंबर पे, वो पेपर को लेके ये बात हो रही है, वहां पे उन्होंने वो बात कही है 23 और 22 में। अगर आपको और भी वो पेपर पढ़ना हो तो आप रिसर्च गेट या फिर गूगल स्कॉलर पे उसे सर्च कर सकते हैं। एक्सेस अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमें बता सकते हैं, हम ट्राई करेंगे हमारे यहाँ से एक्सेस। मोस्टली इंस्टीट्यूशनल एक्सेस मिल जाता है, सो वैसे आप कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। Special reasoning is a critical element for developing ways students think about equations. Given the opportunity, students' special reasoning skills can increase when practice is integrated and supported throughout mathematics instruction. By the time students reach kindergarten, their special reasoning skills predict their overall mathematical success. Therefore, students' educational experience in elementary school should have an intentional focus on improving special reasoning skills. तो यहाँ पे भी सेम कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आप नोट डाउन कर लीजिए आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लग रहा है। Answer point 24. Yes. By the time students reach KG, their special reasoning skills predict their overall mathematical success. So, sir, if it's 100% success, if they are passing the KG class, so then why we have the late bloomers in class 1 and 2? Very nice point. Very nice point. Actually, that sentence was actually a bit. I also disagreed with it. To be honest, I was also okay. Yes. सर एक टर्म इसमें आता है, इसमें लिखा नहीं, mathematical achievement. In mathematics, there is achievement gap is also come due to the mathematical difficulties. The achievement gap is also come in the learning process. Achievement gap की बात कर रहे हैं, okay? सर एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है। What should be the curriculum and where from we should start to develop the spatial reasoning practice starting from class 1 onwards, and what should be the syllabus and for this to accompany with the usual syllabus? Very beautiful question and very needed actually for this point. So यहाँ पे जो रिसर्च पेपर का एम है, उनका पॉइंट ये है, पहली बात तो उनको प्रूव करना है कि स्पेशल रीजनिंग इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो स्पेशल रीजनिंग इम्पोर्टेंट है, ये प्रूव करने के लिए उन्होंने जो है करिकुलम का भी स्टडी किया है। सो हमारे करिकुलम के हिसाब से इन्होंने हमारा जो एनसीएफ है उसके हिसाब से हमें फर्स्ट स्टैंडर्ड में और सेकंड स्टैंडर्ड में स्पेशल रीजनिंग के ऊपर के टेक्स्ट बुक दिए हैं। सो अभी के लिए यस सर, ओके, नहीं मैं बोल रहा हूँ कि
यहाँ पे वो पॉइंट जो है, वो पॉइंट तक जाने के लिए इन्होंने करिकुलम का स्टडी किया है और वो पॉइंट है वहां पे। सो अगर हमें अपने करिकुलम के देखने हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं कि असाइनमेंट ले सकते हैं इन चीजों को, या फिर हम अभी के लिए कुछ करिकुलम का पार्ट लेके एनालाइज कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं स्पेशल रीजनिंग को कितना इंपॉर्टेंस दिया है और उनका कहना क्या है। ऑल्सो ये चीज ऐसी है कि रिसर्च है, सो एक पेपर से बहुत सारी चीजें नहीं डिफाइन हो पाती है, बहुत सारा हायरार्की है पेपर्स का कि यहाँ पे इन्होंने ये जो काम किया है, बहुत सारी जगह पे रिफर करना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या इम्पैक्ट है। सो टू बी ऑनेस्ट, एक सेशन में भी इतनी सारी चीजें ला पाना बहुत ज्यादा जस्टिस नहीं कर पाऊंगा मैं भी। सो इसीलिए अभी के लिए ये पॉइंट रखते हैं, लेकिन जैसे रंजित सर को मैंने कहा कि नंबर्स स्पेशली डेवलप होते हैं, उसके लिए ये वाला पॉइंट भी मैं नोट कर रहा हूँ कि करिकुलम के हिसाब से कितना होना, कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए और कहाँ पे हम ये कर सकते हैं। भूषण सर आप। और एक सर पॉइंट और भी है कि वैसे हमारे केंद्रीय विद्यालय में तो अभी नहीं है इसको कंपल्सरी किया हुआ, लेकिन एक अबेकस प्रोग्राम चलाते हैं संस्थाएं, मतलब जो भी बाहर चलाती हैं, तो वो अबेकस प्रोग्राम दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज स्पेशल लर्निंग इज कंसर्न। सर एक्चुअली वो नंबर्स जो है दे आर रिलेटेड विद द बीड्स, बीड्स जो स्ट्रिंग्स पे टंगे होते हैं, तो उससे धीरे धीरे पहले अबेकस पे कराया जाता है, उसके बाद बच्चा 6 मंथ्स के बाद सारी कैलकुलेशंस ओरली करने लग जाता है। ओके तो उससे क्या है कि वो दावा करते हैं वो लोग कि देयर इज अ ब्रेन डेवलपमेंट, और आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट विद माय ओन सन सर। ओके नाइस। सो मैं एक चीज बताऊंगा कि एबेकस जो है वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल की तरह एक होती है ना, वो जो स्लेट होती है। सो टीचिंग लर्निंग मटेरियल को लेके ना बहुत सारे टू एंड कॉन, ऐसे प्रो एंड कॉन्स है। सो ऐसे है कि कुछ रिसर्चर्स ऐसे बिलीव करते हैं कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल की वजह से हम उस कंसेप्ट को सिर्फ उसी टीचिंग लर्निंग मटेरियल तक सीमित रखते हैं। जैसे कि अगर कल कुछ फ्रैक्शन स्ट्रिप्स बनाए, 1/2 के फ्रैक्शन स्ट्रिप्स है, फिर 1/4 के हैं, और मैं अगर वहां पे देख रहा हूँ कि 1/2 इज इक्वल टू 2/4, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ओके फ्रैक्शन स्ट्रिप कह रहे हैं इसलिए है, या फिर मैं उसके आगे जा नहीं पा रहा हूँ, सो वहां पे वो डिसएडवांटेजेस है। एक एग्जांपल दिया मैंने, अबेकस के बारे में मैंने पढ़ा नहीं है अभी तक, अबेकस के बारे में मैंने आपका पॉइंट लिख के रखा है, क्वेश्चन अबाउट अबेकस। अगर मुझे कुछ पता चलता है अबेकस के बारे में, उसका कैसे हेल्प होता है या कहाँ पे लिमिटेशंस है, तो हम वापस आएंगे उसके पॉइंट पे, बस हम कांटेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में, या फिर श्रीनिवासन सर को मैं भेज दूंगा आपका। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं बिकॉज हमारे पास अभी सिर्फ आधा घंटा है। सो थर्ड स्लाइड, problem solving tasks regarding orientation, transformations and movement of shapes create an opportunity among students and the teachers to engage in rich mathematical discourse. As students discuss their thinking, they will use their hands to gesture while attempting to convey their thoughts surrounding the task. Gesturing allows students to explain the visual imagery taking place inside their head as they work on problem-solving specific tasks. Students' gesture represent the movement of transformation and create an avenue for their thinking to emerge through the discussion. Ali Bari and Nathan found gesture to be an excellent tool for teaching students how to solve special transformation tasks by placing an emphasis on importance of moving the pieces without the actual physical movement. In essence, they use their hands to gesture what their mind was creating and conveying mathematical thinking. So यहाँ पे भी 1 मिनट का पॉज लूंगा, आप जो पॉइंट है वो नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, सो हमें थोड़ा क्विकली जाना पड़ेगा। सो 1 मिनट का टाइम है अभी, और उसके बाद आप जो आपको हाईलाइटेड पॉइंट लग रहे हैं आप नोट डाउन कीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। मैं भी मुझे जो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं मैं भी नोट डाउन कर रहा हूँ आपके साथ, सो हम कंपेयर कर पाएंगे अगर टाइम मिला तो।
ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। वैसे भी स्लाइड आपके पास आने वाले हैं सेशन के बाद, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। टाइम Sir, here gesture means 32 number point student gesture represent. सो उनके जो हाव भाव होते हैं और वो जो हैंड जेस्चर्स होते हैं, Hand gestures, sir. Yes, they're calculating, they do some hand gestures, sir. That is no. yeah, that is what they mean. With calculation of a pattern, also they keep on doing some gesture mentally. Yeah. That they explain. Means by counting in the through fingers and that's it. That is the Yeah. Counting through fingers, yes, that can, but वहाँ पे कैसा So है कि visualizing some उसको pattern यूज कर रहे हैं, there, हाँ, that's the thing. That also yeah, gesture. No? काउंट करते वक्त वो फिंगर्स यूज कर रहे हैं, कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, वो जो करते सोच हैं? रहे, वो हाथ से दिखा रहे कि ओके यहाँ पे ट्रायंगल आएगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ पे Yes. सर्कल होगा, ये जो जेस्चर्स है, That is gesture. Those are the gestures. जेस्चर्स, या Okay, okay. तो आगे बढ़ते हैं। सॉरी, थोड़ा कुछ नेटवर्क इशू। Is my slide moving? No, not yet. Some technical issue because of which it's locked. I'm just resharing it. Wait a minute. ओके, सो अभी जो पॉज फॉर डिस्कशन मैंने कहा था, आपने जो पॉइंट्स नोट डाउन किए, इतने 3 स्लाइड जो हमने 3-4 स्लाइड्स देखी, उसमें से आपको कौन सा पॉइंट इम्पोर्टेंट, कुछ जैसे सीमा मैम और बाकी कुछ लोगों ने तो पहले बोल दिया है, अगर आपका कुछ पार्ट बोलना बाकी है, आपको लगता है कि वो पार्ट इम्पोर्टेंट था और अभी तक कवर नहीं हुआ है, तो 2 मिनट में। हाँ सर, पॉइंट नंबर 33 सर। पॉइंट नंबर 33, gestures to be an excellent tool for teaching students how to solve spatial transform. Yes. So excellent tool कहा है उन्होंने, teaching student how to solve spatial transformation task. Okay, nice point. Anybody else want to add? Spatial reasoning helps the students to develop mathematical skills better. So students must be given opportunity to practice it. Yes, yes. So हमें वो प्रैक्टिस के लिए पॉइंट देने, टाइम देना चाहिए। भले ही वो करिकुलम में हो या ना हो, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके उनको दे देना चाहिए। Yes, yes. That will be much so great of you all, because करिकुलम में ना होते हुए भी अगर कुछ चीज करनी है, I know it might be very difficult task. Sorry, I could not hear what you were saying. But sir, that is the most important thing. If we give opportunity to the student, then only all these points will be achieved, and not 100 but 90% we are going to achieve it. Because Yes, I agree. what happens in our scenario in the schools, what happens, the teachers do, mainly the teachers, they carry out some activity and the blackboard work. If really, if we are going to change ourselves and the teaching scenario, I agree with Bhushan sir, the opportunities should be given to the student. If maximum itne research work mein sir jitne points hai, all this carries that opportunity should be given to the students, with all the mathematical skills will be developed then. Your orientation, imagination, visualization, everything. Yes, yes. एंड ये मुझे बहुत पॉइंट पसंद आता है जब भी मैं टीचर्स से इंटरेक्ट करता हूँ, तो एक्चुअल टीचर्स हमेशा जो एक्चुअल ग्राउंड की सिचुएशन है वो जानते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम रिसर्चर्स क्या होता है कि थोड़े से डिस्कनेक्टेड होते हैं स्कूल से। ऐसे नहीं होता कि हम स्टूडेंट के साथ डील नहीं करते, हम सेशन लेते हैं या फिर कभी कभी कुछ क्लासरूम्स को कुछ पॉइंट सिखा देते हैं, कुछ एक्टिविटी करा लेते हैं, लेकिन जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी है वो आप सभी को पता होता है कि एक्चुअल ग्राउंड पे क्या हो रहा है और कैसे सीख रहे हैं बच्चे। सो वो जो रिसर्चर्स और टीचर्स एक साथ मिलकर जो कोलैबोरेट करते हैं वो काफी काम अच्छा हो सकता है। सो या भूषण सर वांटेड टू से समथिंग। रिसर्चर्स क्वेश्चनियर्स लेने के लिए तो आते हैं। यस, डेटा अगर चाहिए रहता है तो टीचर्स के पास जाना पड़ता है और स्टूडेंट से
क्वेश्चनर्स एंड यस ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, टाइम थोड़ा सा एक्टिविटी के बारे में भी बात करना था। सो रिलेशनल थिंकिंग, ये जो पार्ट था रिलेशनल थिंकिंग का, उसका जो स्लाइड था, वो जो पेज था वो 2 पार्ट में बटा हुआ था, सो मैंने उसे कॉपी पेस्ट किया है। In addition to spatial reasoning, relational thinking or early algebraic reasoning is critical for long-term success in mathematics. Students need time to develop relational thinking with practice designed to explicitly examine the way in which numbers relate and ways those relations can generalize to other areas of mathematics. One way to improve conceptual understanding is to increase the exposure of problem-solving tasks involving non-traditional equations. It has been shown that students as young as kindergarten and first grade have informal knowledge of number relations. However, the mathematics presented in traditional textbook do not explicitly draw out these relations, allow time for the relations to organically emerge, or instruct student to determine how the ideas can be generalized. So ये ब्लेटन और कपूर करके जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये कहा है। Consequently, there is a need for mathematics instruction to incorporate more than just the traditional format of equations into daily lessons and indulge ways to represent relational equivalence. So यहाँ पे थोड़ा सा relational equivalence की बात हुई है, यहाँ relational thinking की बात हुई है कि 2 चीजों को जोड़ पाने की जो कैपेसिटी है बच्चों की। और जैसे आपने सभी ने कहा कि ये पॉइंट देखिए यहाँ पे ही आ गया कि आपको एक थोड़ा सा फॉरवर्ड जाके, एक स्टेप अहेड जाके आपको कुछ चीजें करनी पड़ सकती है एडिशनली सिलेबस के बाहर की, कि जो एक्सप्लिसिटली टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, बट आप स्टूडेंट्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए करते हैं। थोड़ा सा टाइम देता हूं मैं, अगर आपको कुछ पॉइंट नोट डाउन करने हैं। 30 सेकेंड्स आई थिंक विल बी इनफ, बिकॉज अगर नहीं तो हमारी एक्टिविटी रह जाएगी। और इसके बारे में जो ये जो है शॉर्ट में जो ये दे रहा हूं मैं, इंट्रो पार्ट ले रहा हूँ वो पेपर के सेक्शंस का। आपको पेपर पूरा मिलने वाला है, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं और मुझे लिख सकते हैं कि आपको कोई पॉइंट नहीं क्लियर है, हम साथ में डिस्कस कर सकते हैं बाद में आगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ अभी के लिए। अभी यहाँ पे इन्होंने ना इनएक्टिव आइकॉनिक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात की है। उनका वो जो पॉइंट्स है वो उनके स्टडी में यूज हुआ है। ये जो पेपर है या जो सिंस आपको पढ़ने के लिए देने वाला हूं तो इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। तो ब्रूनर्स मॉडल ऑफ रिप्रेजेंटेशन बिगिन विद द इनएक्टिव व्हिच इंक्लूड मैनिपुलेटिव्स और कॉन्क्रीट और फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। द सेकेंड रिप्रेजेंटेशन इज आइकॉनिक which represent any visual representation like diagrams, number lines, bar models and graphs. The third representation is symbolic, which are abstract symbols like equations and algorithms. According to Brunner, students access their background knowledge to representations to help make connections when the abstract symbols are isolated from other contexts. Concrete materials provide an opportunity for students to build background knowledge with iconic images depicting the meaning of abstract symbols. When new abstract symbols are introduced, students can use their visual background knowledge as a retrieval mechanism to help remind them the relevant concepts. Instructional tasks heavily focus on abstract symbols tend to draw out the use of rote memorized skill practice, which has been shown to compete with the development of spatial reasoning skills. On way to help students make connections between numbers and symbols to incorporate concrete materials. So ये थोड़ा आधा स्लाइड है, लास्ट पार्ट नहीं आ पाया उसका। So यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उन्होंने कहा है कि 3 तरीके का जो इनएक्टिव के बारे में बात हो रही है कि मैनिपुलेटिव होता है जिससे हम ठोस चीजों के साथ सीखते हैं कि हम हैंडल कर रहे हैं मैनिपुलेटिव को। देन उसके बाद हम विजुअलाइज कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ डायग्राम, और वहां उसके बाद का एक स्टेज है जो कि इक्वेशंस वाला स्टेज, जो मतलब जैसे हायर मैथ्स होगा 11th-12th में कोई ऐसे नहीं कहेगा कि आपने आपको पैरेललोग्राम या जैसे पैराबोला या इलिप्स या बाकी सारे कोनिक सेक्शन है उसका
डायग्राम मिलेगा हर बार क्वेश्चन पेपर में, आपसे अज्यूम किया जाएगा जब भी आपको कहा जा रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो वहां पे आपके साथ सामने दो लाइंस है, आइदर दे आर इंटरसेक्टिंग और दे आर पैरेलल, वो इक्वेशन से हमें मोस्ट ऑफ द टाइम डिसाइड करना होता है। सो उसके बारे में बात हुई है। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। डेवलपिंग मैथमेटिकल थिंकिंग, मैं 2 मिनट इस पे ये करता हूँ, बाकी का पार्ट जो इसमें होगा वो हम स्किप करते हैं ये वाले स्लाइड के बाद। सो developing mathematical thinking, curriculum should include ways to promote spatial reasoning through mathematical modeling to develop students' conceptual understanding. Mathematical tasks should include both traditional and non-traditional equations. The use of mathematical modeling should connect through progression of inactive models, iconic methods, and formal symbolic models. सो नई चीजें और पुरानी चीजें दोनों को कंबाइन करने का, जैसे आपके केस में ऐसे हो सकता है कि आपका टेक्स्ट बुक का चैप्टर किसी एक्टिविटी के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, सो वैसे कर सकते हैं। आइकॉनिक मॉडल आर वन वे टू इंट्रोड्यूस स्पेशल रीजनिंग टास्क एंड कैन बी इंटीग्रेटेड throughout the instructional year to increase students' flexibility with the structure of equation and mathematical competency. The Developing Mathematical Thinking Institute offers a comprehensive curriculum design to encompass all these components for students to develop procedural and conceptual understanding. That Development of Mathematical Thinking Institute (DMTI) curriculum is an alternative to typical curriculum for for teaching mathematics to help teachers develop different approaches to how mathematics is taught. So यहाँ पे एक मेरा खुद का पर्पस भी यहाँ पे एक मैं बता देता हूँ, ये सारे रिसर्च पेपर क्यों इन्वॉल्व किया है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि टीचर्स जब भी ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, अगर वो रिसर्च को एक्सपोज हो रहे हैं तो खुद एक बहुत अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं अगर वो लिखे अपने पॉइंट्स, उन्हें जो लगता है। अगर कुछ चीज़ों का थोड़ा सा आई नो आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा आपके शेड्यूल को और उसके हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा, बट अगर आप कर रहे हैं तो टीचर्स जो के पास जो डेटा और एक्सपीरियंस दोनों चीजें है, उसके वजह से बहुत ही अच्छा रिसर्च और बहुत यूजफुल रिसर्च आगे आ सकता है। और आप भी शायद आगे अगर आप पेपर पढ़ के और कुछ आपके क्लास में अगर जैसे कि लेसन प्लान के तरह कुछ एक्ट कर रहे हैं और उसके आउटपुट्स लिख रहे हैं और उसके बारे में आपने सोचा कि मैं लिखूंगी और मैं रिप्रेजेंट करूंगी कॉन्फ्रेंसेस में। सो इंडिया में वो थोड़ा कम है अभी भी, लेकिन अगर हो रहा है तो दैट विल बी वेरी नाइस। सो दैट्स व्हाई आई इंक्लूडेड दिस रिसर्च टॉपिक्स। भूषण सर वांटेड टू से समथिंग। यस सर। सर एक्चुअली क्या है, जो आजकल का सिलेबस जैसे चल रहा है अभी फिलहाल, उसमें भी यही चीजें सेम चीज है। जैसे हम कहते हैं कि लिखा हुआ है जैसे स्टेटमेंट सम होता है, स्टेटमेंट सम के बीच में हम बच्चों को बोलते हैं कि इसमें क्या करना है आपको। जैसे 3 टॉफीज आर गिवन, देन two more टॉफीज आर गिवन, हाउ मेनी टोटल यू हैव। तो उससे एक इक्वेशन बनाते हैं बच्चे, 3 + 2 = 5। This is, I think, the same expression, that is a construction of mathematical equations. And second, for example, आप एक थ्योरम दी हुई है या कोई एक्सरसाइज दी है, उसकी डायग्राम बनानी है, सर्कल ड्रॉ करना है, उसके में लाइन ट्राइजेक्टरी ड्रॉ करना है या उसमें कॉर्ड ड्रॉ करना है, व्हाटएवर इट इज। तो हम बोलते हैं बच्चों को डायग्राम ड्रॉ करो। और फिर उसके बाद कोई मान लो कोई सम होता है एरिया पेरीमीटर का, उसको भी हम कहते हैं पहले डायग्राम ड्रॉ करो। तो मेरे को लगता है ये सेम मैथमेटिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिकल थिंकिंग जो है उसको ट्रांसफॉर्मेशन है टू द इक्वेशंस एंड टू द डायग्राम्स। एंड डायग्राम अगर होती है तो उसको अंडरस्टैंड करना है कि आपने क्या करना है। आई थिंक इट इज वेरी वेल इन द करिकुलम, बट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट इट इज टू बी डेवलप्ड हाउ द करिकुलम इज टू बी डेवलप्ड। ओके, ये और एनएक कैसे हो रहा है वो। यस यस। आई एम सो सॉरी, मेरे कभी कुछ चैट के मैसेजेस अगर स्किप हो चुके होंगे। अभी के लिए तो जो है वो मैंने पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूँ। मैं कुछ ओवरव्यू ऑफ स्टडी में उन्होंने क्या क्या किया था, कौन से टाइप का ग्रुप था, मैं थोड़ा बता देता हूँ। कि उन्होंने एक डाइवर्स ग्रुप लिया था, कि उन्होंने ऐसे किया कि कुछ बच्चों को एकदम ट्रेडिशनल वाला जिसमें स्पेशल रीजनिंग को जगह नहीं थी ज्यादा, उनके साथ एक ग्रुप था बच्चों का, वो ग्रुप लिया। एक बच्चों का ग्रुप था जहाँ पे ये जो
EIS मतलब इनएक्टिव आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के साथ सिखाया गया किसी एक ग्रुप को, और एक ग्रुप को बिना EIS के सिखाया गया ट्रेडिशनल वे में, जो ट्रेडिशनल वे वहां पे था। और उन्होंने जो लॉन्जिट्यूडनल स्टडी की कि कुछ सालों तक पढ़ा कि बच्चों को कैसे मैथमेटिकल स्किल डेवलप हो रहा है, और उसके बारे में उन्होंने स्टडी के बारे में बताया। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग, यहाँ पे फाइंडिंग्स भी दिए हैं, उसमें काफी स्टैटिस्टिकल डाटा है। जब भी मैं पेपर आपको भेजूंगा, अगर आपको स्टैटिस्टिक्स नहीं भी आता है और आपको स्किप करना है, यू कैन स्किप, बिकॉज इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग दिए है उन्होंने। सो और यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ रीजनिंग वाला, रिसर्च वाला पार्ट, क्योंकि थोड़ा टाइम हमारे पास कम है। सो स्पेशल रीजनिंग, अभी जो मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि स्पेशल रीजनिंग कैन बी इम्प्रूव्ड थ्रू प्रैक्टिस एंड इंटरवेंशन। ये जो बुक है अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ स्पेशल रीजनिंग, ब्रेंट डेविस एंड ग्रुप ऑफ दैट स्टडी द स्पेशल रीजनिंग, उनके हिसाब से कुछ टेक्निक्स है जिनके हिसाब जो हम अगर यूज करेंगे तो स्पेशल रीजनिंग जो है बच्चों का वो इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको टीचिंग के लिए बहुत यूजफुल हो सकता है ये। सो उनका कहना है कि सम टेक्निक, उन्होंने 4 टेक्निक दिए हैं वहां पे। तो कंस्ट्रक्शन प्ले, सो वुडन ब्लॉक्स यूज करके आपको जोड़ो ज्ञान का सेशन होगा। जो पहले सेशन हुआ है उसमें कुछ TLMs देखे हैं आपने, या कल के सेशन में देखने वाले हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल? It will be on Monday. ओके, मंडे। सो मंडे के सेशन में कुछ TLMs देखेंगे। सो सोमा क्यूब करके होता है, या वुडन ब्लॉक होते हैं, या लीगो सेट्स होते हैं, जो जोड़ के एक दूसरे को हम कुछ कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं। सो वो एक कंस्ट्रक्शन प्ले हुआ। पजल प्ले जिसमें जिगसॉ पजल, टैनग्राम, पेंटामिनोज, इनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कि ये जो एक्टिविटीज है, ये पजल्स है, वो बच्चों का जो स्पेशल रीजनिंग का जो स्किल है वो ट्रिगर करेंगे कि ओके मुझे यहाँ पे ये पॉइंट ये जो पीस है मुझे यहाँ पे ही रखना है, तभी जाके ये पिक्चर जो है कंप्लीट होगा। देन होगा ड्राइंग टास्क, जो आई थिंक टेक्स्ट बुक में भी है, पेंटिंग और ड्राइंग टास्क है। देन पेपर फोल्डिंग। तो ये 4 टास्क उन्होंने दिए हैं। सो अभी के लिए आई थिंक वी हैव 7 मिनट्स। सो क्विकली एक एक्टिविटी देख लेते हैं। सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन पेंटामिनोज बिफोर? होते क्या है सर? अच्छा, ठीक है नहीं, अच्छा। सो एक मिनट मैं ये देता हूँ। पेंटामिनोज आर मेड बाय जॉइनिंग 5 स्क्वायर्स so that at the joints one side of a square fully join with one side of another. There are 12 possible arrangement in which 5 square can thus be joined to each other. So पेंटामिनोज ऐसे होते हैं कि let's say मेरे पास 5 स्क्वायर्स है, ये जो आपको रंगोमेट्री के किट में मिल जाएंगे, या फिर पेंटामिनोज का अलग किट भी आता है। सो आपको नवनिर्मिति या जोड़ो ज्ञान से आपको मिल सकता है। सो ये जो स्क्वायर्स है उसे अगर मैं जोड़ रहा हूँ एक दूसरे के साथ, और ऐसे जोड़ के सिर्फ साइड के साथ जोड़ा जाएगा। जैसे लेफ्ट हैंड साइड की फिगर जो है वो एक पेंटामिनो रिप्रेजेंट कर रही है, राइट हैंड साइड की फिगर में एक हो रहा है कि वो जुड़े तो है लेकिन पॉइंट से जुड़े हैं, साइड बाय साइड नहीं जुड़े हैं। साइड के साथ जुड़नी चाहिए, पॉइंट के साथ नहीं जुड़ सकते, ऐसे पॉइंट के साथ नहीं जुड़ सकते। ओके, इज इट विजिबल नाउ? ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे हो सकता है जो मैंने एक डायग्राम, एक फोटो इंक्लूड किया है उसमें वहां पे लिखा गया है। सो ऐसे सारे एक्टिविटीज में एक चीज सामने आ सकती है कि बच्चे जो है वो एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं। अभी हम एक काम करेंगे, आपको तो आंसर मिल चुका है कि 12 टाइप के हैं। आप मैं 2 से 2.5 मिनट देता हूँ। आप प्लीज जैसे कि आपके पास पेपर होगा या नोटबुक होगी, उसके ऊपर ऐसे शेप्स ड्रॉ करने की कोशिश कर सकते हैं। और इसमें एक नई चीज, आपके पास टाइम कम है इसलिए मैं पहले से ही अनाउंस कर रहा हूँ कि जो 1st और 2 है वो दोनों सेम पेंटामिनो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो रोटेशन के साथ है। उसका ओरिएंटेशन अगर चेंज होगा तो वो सेम होंगे। वैसे 3rd और 4th जो है, 3rd और 4th पेंटामिनो है, वो 3rd और 4th पेंटामिनो भी सेम है क्योंकि वो रोटेशन हो रहा है। वैसे ही पेंटामिनोज में ये जो 5th और 6th है, ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। सो मिरर इमेज और रोटेशन जब भी हम डिलीट कर देते हैं, हमारे पास 12 पेंटामिनोज होते हैं।
सो आप अभी एक 2 मिनट का टाइम लीजिए और ट्राई कीजिए कि आपको जो पेंटोमिनोज आप कर पा रहे हैं क्या, कितने पेंटोमिनोज आप ड्रॉ कर सकते हैं, और बच्चों के साथ अब कैसे कर सकते हैं ये एक्टिविटी, वो थोड़ा सा आपके असाइनमेंट में है कि अगर कोई एक्टिविटी करनी है तो बच्चों के रिस्पॉन्सेस क्या आ सकते हैं, वो सारी चीजें आपको डिस्कस कर सकते हैं आप प्रेजेंटेशन के ऊपर। सो आप थोड़ा भी ड्रॉ कीजिए, आप 5 स्क्वायर्स यूज करने हैं और 5 स्क्वायर्स यूज करके डिफरेंट शेप्स कितने बनते हैं, 12 शेप्स बनते हैं, और रोटेशन और रिफ्लेक्शन एलिमिनेट करने हैं किसी भी शेप के। मैं 2 मिनट का पॉज लेता हूँ। मेरे 9 हो गए सर। हाँ, थैंक यू। थोड़े से और सोचने का कोशिश कीजिए, 3 ही मेरे भी 9 ही हुए सर। ओके, कैन अंडरस्टैंड। कुछ है वो काफी मैं खुद कहूँ तो मैंने पहले देखा हुआ था जब भी मैंने मैथ एजुकेशन ग्रुप ज्वाइन किया, और उसके बाद पहले एक्टिविटी का आंसर देख लिया था, सो मुझे वो इजी हुआ। लेकिन अगर आई कैन अंडरस्टैंड कि कुछ पेंटोमिनोज सोचने के लिए बहुत डिफिकल्ट है। Srinivasan sir, can I get 10 minutes extra? No problem, sir. You continue. You can go up to 11:15. No issue. That's not a panic. Yes, Seema ma'am. Yes, ma'am. Sushant, you can have up to 11:15. No problem. Okay, thank you so much, sir. Yes, Seema ma'am. Yes. I'm looking at Sir, your 10 done. 10 done. Okay. These are 10 and one is yours. So Yes. last one is 12. मैं try कर दूँगी. Yes. 11. आपका जो 11th ये है सीमा मैम, और जो यहाँ पे These are only 10. Okay, so जो 10 12 सर। 12 is one is yours only. Okay. Including that, it is 10. Are they आपके 10 हुए हैं, और पांडे सर कुछ बोल रहे थे 12 हुए उनके। मेरे 11 हुए सर। Two more. आपके 11 हुए? Yes sir. Okay, nice. 11. I have done 11. Well done, sir. 12 done. Wow. Yes. थोड़ा सा सीमा मैम के ऐसे हुआ कि मुझे एक शेप जो है वो अलग दिखा, और दैट्स व्हाई आई थॉट कि ओके कुछ और शेप है। नहीं दिखा। 12 done sir. Very nice. So मैं आगे जाऊँ, आंसर डिस्प्ले करूँ? Just a minute sir. Okay. I'm waiting for a minute. Okay. 11 done, sir. आंसर डिस्प्ले कीजिए, 12th वाला देख लेंगे। ठीक है। जस्ट एक किसी ने रिक्वेस्ट की है एक थोड़े मिनट के लिए। 12 वाला स्ट्रेट लाइन में होगा। हाँ 12 डन। That I have done. Straight line one. उनको नाम भी कैसे देना है ना, उसके बारे में ट्रिक है, मैं बताता हूँ। ओके, संजीव कुमार सर के भी 11 हुए हैं, प्रीति मैम के भी 11 हुए हैं। 12 डन। वाह। Yes, sir. 12 done.
ओके, सो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप चेक कीजिए आपका आंसर। ओके, देखिए इसमें से कौन से थोड़े से रोटेशन के साथ है, कुछ रिफ्लेक्शन के साथ है। आपको देखना है कि आपने इसका रिफ्लेक्शन भी बनाया होगा किसी। स्क्रीन पे रखिएगा अभी सर। यस यस, आई एम कीपिंग इट ऑन स्क्रीन, जस्ट वेरीफाइड। ये सब इंग्लिश के अल्फाबेट्स बन गए। यस, तो इसीलिए याद रखने का एक काफी अच्छा टेक्निक है, जो सीधा लाइन वाला जो है, पांचों के पांचों सेम लाइन में आते हैं, उनको हम ओ कर देते हैं। उसके बाद पी क्यू आर एस टी से लेके जेड तक सारे के सारे मिल जाते हैं हमको, एक पर्टिकुलर वे में हमने अरेंज करेंगे। तो देखिए पी पी के तरह दिख रहा है, सिर्फ क्यू को याद रखना है, थोड़ा सा क्यू जो स्मॉल क्यू के तरह है, आर तो आर के तरह है, एस भी है, ई है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। और इस वजह से आपको याद भी रहेगा कि आपका कौन सा लेटर मिसिंग है, आप 12th हुए नहीं हुए। हेलो, कुड नॉट हियर। डब्ल्यू वाला रह गया, या आई कैन अंडरस्टैंड, वो थोड़ा सा ट्रिकी है सोचना ऐसे या कैसे जाना है। ऑल्सो मैंने जो इमेज दी थी आपको कि ये जो नहीं है वो थोड़ा सा डब्ल्यू से सिमिलर हो जाता है, तो इसलिए शायद वैसे हो सकता है। ओरिएंटेशन अलग है सर, और डब्ल्यू ऐसा नहीं लग रहा, ओरिएंटेशन इज डिफरेंट। ओरिएंटेशन इज डिफरेंट, यस। तो आप बच्चों के साथ ये एक्टिविटी करते वक्त देखिए आपको कितनी सारी चीजें हैं कि बच्चे बहुत सारे शेप्स ढूंढेंगे, बहुत सारे ओरिएंटेशंस में बना देंगे। ओरिएंटेशन होगा, वी के जगह वो एक हट के तरह हो सकता है या एल के तरह हो सकता है, वो वी वाला शेप, और वहां पे आपको उनको बताना और मैं ऐसे सजेस्ट करूंगा कि ये एक्टिविटी जब आप लेंगे तभी अगर कोई दो बच्चे अगर सेम शेप डिफरेंट ओरिएंटेशन में ला रहे हैं, तो आप एक चीज कर सकते हैं कि दोनों को बोर्ड की तरफ बुला के, अभी तो बोर्ड नहीं है, आप ऑनलाइन सिखा रहे होंगे, लेकिन उनके दोनों के शेप बाकी क्लास को दिखा के आप पूछ सकते हैं कि ये दो सेम है या डिफरेंट है। सेम है तो क्यों सेम है, रोटेशन काम कर रहा है या रिफ्लेक्शन काम कर रहा है, वो जो थॉट प्रोसेस है, रिफ्लेक्ट कर पाना, रिफ्लेक्शन समझ पाना, ये इसी ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन है या ये इसी ऑब्जेक्ट का रोटेशन है, वो समझ पाने के स्किल के लिए काफी हेल्पफुल है, एक्टिविटी है। Like sir, W in another orientation it become like staircase. The way I made it looks like a staircase. W जो है sir. W जो है वो स्क्वायर के तरह दिख। नहीं, staircase के तरह। Staircase. That is the. Yes. Excuse me, sir. Yes. There is one similar activity is there in class 5 mathematics. There are 12 combinations are there, sir. 12 combinations. Yes. And all 12 have been put under 10x6 grid. All those I am showing in the mobile, sir. Yes, I can see that. Yes. 12, 5, 6, 12, 5, 6, 12 combinations are there, sir. Yes. There are actually with pentominos, since there are 12 pentominos, each containing 5 blocks, so yeah. 60 टोटल छोटे ब्लॉक्स बन जाते हैं। तो 60 के जितने डिविडेंड है ना, उसके हिसाब से हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। यू रीड विकिपीडिया पेज ऑफ पेंटोमिनोस। So one activity is tiling pentomino on chessboard. Chessboard पे 4 ब्लॉक फ्री रहते हैं because chessboard 8x8 का होता है, so 64 होता है। And 5x12 वाले इसमें भी कर सकते हैं आप, 5x12 भी है, और कौन सा है, 6x10 है, उसमें हो सकता है। ऐसे डिफरेंट टाइलिंग हो सकते हैं pentomino. The funny thing is the 60 are arranged in a rectangular shape. Sorry, I am unable to hear. The funniest thing is that those 12 combinations with the 60 are arranged in a rectangular fashion. Rectangular array, yes. All they are arranged there. Can you see, sir? Can you see? Yes, I can see yours. It is there in the class 5 mathematics. Oh yeah. सर ये क्लास में ना, बड़ी क्लासेस में जाके आइसोमेरिज्म का भी कंसेप्ट है इसमें। Wow. Yeah. So true. So अगर हम रिफ्लेक्शन सबका ये स्लाइड देख के हो चुका होगा आई थिंक अब तक। So मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर हम रिफ्लेक्शन को अगर डिफरेंट पेंटोमिनो अज्यूम करते हैं तो 18 मिलते हैं। कुछ इसका रिफ्लेक्शन सेम होता है, कुछ का डिफरेंट होता है, तो 18 मिलते हैं। लेकिन हमें 18 के इसमें नहीं पढ़ना है, वो सिर्फ एक
आपके नॉलेज के लिए दिया है कि 18 होते हैं अगर हम रिफ्लेक्शन अज्यूम करते हैं तो, क्योंकि किसका रिफ्लेक्शन नहीं है, जो O था उसका रिफ्लेक्शन नहीं है, T का रिफ्लेक्शन नहीं है क्योंकि सेम होगा, U का, V का, X का, यस X का रिफ्लेक्शन नहीं है क्योंकि वो सेम होगा, क्योंकि वो रोटेशन से भी मिल जाएगा। ये जो बाकी चीजें वो रिफ्लेक्ट ही होनी पड़ेगी, रोटेशन से नहीं मिलेंगी। ठीक है, 10 मिनट बचे हैं। आप में से कितने लोगों को टैनग्राम्स पता है? टैनग्राम पता है? ओके, They are in the textbooks now. Yes. They are there in the maths textbooks. Yeah. So जो सेकेंड एक्टिविटी मैंने सोची थी वो टैनग्राम्स की थी। So यहाँ पे देखिए टैनग्राम्स बनाने से लेके हैं, टैनग्राम बनाने कैसे हैं। हेलो, Yes. टैनग्राम्स बनाने का प्रोसीजर भी है आपके पास। Yeah, textbook it's having from 3rd standard textbooks. These are given at the back, and they can cut and prepare their own tangram. Very nice. So वो जो टैनग्राम कितने पीसेस वाला है? 7 पीसेस वाला है या 5 पीसेस वाला है? 7 ना? Both are there. Both are there. Very nice. Thank you for informing me. Yeah. So वो जो कंस्ट्रक्टिंग जो होता है कि आपको शेप डिफरेंट बनाने हैं, जैसे बच्चों ने बाकी बाजू में जो शेप्स बनाए हैं, कैट बना है, बर्ड बना है, रॉकेट बना है, सो वैसे सारे शेप्स बना सकते हैं। वो भी स्पेशल रीजनिंग के लिए काफी, डेवलपमेंट के लिए काफी अच्छे होंगे। सो ये था टैनग्राम का एक्टिविटी। सिंस यू नो आई एम स्किपिंग दैट राइट नाउ। और अभी के लिए असाइनमेंट के बारे में बात करते हैं। अभी के लिए सेशन में इतना ही था और असाइनमेंट के बारे में बात करते हैं। तो ग्रुप असाइनमेंट के लिए एक फर्स्ट एक्टिविटी ऐसे हो सकता है कि आपको स्पेशल अंडरस्टैंडिंग को रिप्रेजेंट करने वाली कोई एक्टिविटी ढूंढनी है, ओके, या फिर जो एक्टिविटी ली है हमने उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। बट एक चीज प्लीज, मुझे श्रीनिवासन सर ने भी कहा कि 5 ग्रुप है तो सेम होने की संभावनाएं ज्यादा है, तो थोड़े से ग्रुप में आप एक दूसरे के साथ डिस्कस कीजिए कि आपने ये एक्टिविटी ले चुके हैं, आपने डिसाइड कर ली है, आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो उसके लिए आपको क्या करना है, डिटेल ऑफ एक्टिविटी, व्हाई दिस इज, डिटेल बताने हैं, वो कैसे कंडक्ट करना है वो बताना है। फिर व्हाई दिस रिलेटेड टू स्पेशल रीजनिंग, वो स्पेशल रीजनिंग के साथ रिलेटेड क्यों है और उससे गेन क्या होगा स्टूडेंट्स के लिए। और इसके आगे अगर आपको टाइम मिले, आई नो बहुत कम टाइम है आपके पास, 4 घंटों का आपके इसके बाद, तो बहुत सारी चीजें होंगी। तो स्टूडेंट जो है कैसे सोचेंगे इसके, ये एक्टिविटी के थ्रू, वो एक्टिविटी के थ्रू वो आपको जस्टिफाई करना है आपके प्रेजेंटेशन में या व्हाटएवर। प्रेजेंटेशन पीपीटी में ही होना चाहिए ऐसे नहीं है, अगर आप ओरली भी बताना चाहेंगे, नोट्स शेयर करेंगे, नोट्स के फोटो शेयर करेंगे पीपीटी के फॉर्म में, वो भी चल जाएगा। देन अगर वो नहीं करना है, अगर वो आपको ग्रुप असाइनमेंट, आपको एक्टिविटी नहीं करना है, तो ऑप्शन है सर्च एनी रिसर्च पेपर ऑन स्पेशल अंडरस्टैंडिंग और रीजनिंग ऑन वेब। तो वो उसके लिए आप गूगल स्कॉलर या रिसर्च गेट नाम का वेबसाइट है, वहां पे सर्च कर सकते हैं। एंड वो पेपर समराइज कर दीजिए कि उसमें कहा क्या गया है। तो समराइज करने के बाद यू कैन राइट दैट समरी एंड इन फॉर्म ऑफ पीपीटी, और यू कैन रीड आउट दैट समरी। ये आपका ग्रुप एक्टिविटी हुआ, ओके। एंड ट्राई टू मेक श्योर दैट किसी और ग्रुप ने लिया हुआ एक्टिविटी आप ना ले, प्लीज वो उतना कीजिए। देन इंडिविजुअल असाइनमेंट, इसमें आता है टेक्स्ट बुक एनालिसिस। सो आपको क्लास 1 और 2 या फिर अभी क्लास 3 के बारे में भी बात हुई है, सो यू कैन एक्चुअली एक्सटेंड दैट। आई एम नॉट रिस्ट्रिक्टिंग यू टू 1 और 2 टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 1, ग्रेड 1 और ग्रेड 2, विच इज उसमें से जो एक टॉपिक लेना है या चैप्टर लेना है जो स्पेशल थिंकिंग के साथ रिलेट हो रहा है, और एनालाइज करना है, समराइज करना है आपको कि इसमें से कौन से एग्जांपल हेल्पफुल है, जैसे हमने अभी किए थे कि उसमें कौन से स्किल यूज हो रहे हैं। पैटर्न्स में का एग्जांपल देखा हमने। देन व्हाट इज राउंड, व्हाट इज लॉन्ग, वो वाला शायद एक एग्जांपल था उसमें का, कि वो उसमें वो चैप्टर में के एग्जांपल, सेकंड स्टैंडर्ड के एग्जांपल देखे हमने, फर्स्ट स्टैंडर्ड के भी एग्जांपल देखे, और उसके बारे में एनालिसिस किया हमने कि क्या क्या इंक्लूडेड है, वो चीज है। एंड वो एनालिसिस आप समरी के हिसाब से लिख सकते हैं, 150 वर्ड्स या फिर 100 वर्ड्स भी चल जाएंगे अगर आपको 150 वर्ड तक नहीं जा पा रहे। और उसके अगर वो नहीं हो पा रहा है, अगर वो नहीं करना है, टेक्स्ट बुक एनालिसिस नहीं करना है एज ए इंडिविजुअल असाइनमेंट,
तो आप समरी ले सकते हैं, ये जो पेपर हमने डिस्कस किया उसका, वो 150 वर्ड्स में आप वो लिख सकते हैं समरी। और उसके लिए आप मैंने एक सेक्शन दिया है कि सेक्शन 8 जो है फाइंडिंग्स ऑफ दैट पेपर, यू कैन स्किप दैट बिकॉज वहां पे स्टैटिस्टिकल टर्म्स है। सो दैट आई वांटेड टू से। Srinivasan sir, you want to add anything to this, or you have any suggestions? I think during the presentation in the afternoon, they can have one individual assignment and they can present one group assignment. I feel. Okay, that will be very nice. Let them decide who will be giving the individual assignment, and other person can have collectively they can have one group assignment. Okay. So 2 from each group we want, one individual assignment and one group assignment. A screenshot of both of them have already been shared in your WhatsApp group. Srinivasan sir. Srinivasan sir. Yes sir. We are restricting only for class 1 and 2 textbook review, or we can add even 3 to 5 also. You can add. The individual assignment SR has given only such a topic from class 1 or 2. So I think अगर आपको लगता है कि स्पेशल रीजनिंग है वहां पे 3rd, 4th और 5th, वी आर ओपन फॉर इट टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे भी इम्पोर्टेंट लगता है कि अगले स्टैंडर्ड्स में वो कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है स्पेशल रीजनिंग। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टू अंडरस्टैंड एक्चुअली। ओके सर, थैंक यू। या सुशांत सर। यस सर। ये जो आपने बताया कि थिंग्स एंड स्किल्स व्हिच आर कंडक्ट अंडर स्पेशल रीजनिंग, इसमें अगर मैथमेटिकल ट्रिक की बात करें, जो ट्रिक है, तो वो ट्रिक ये स्पेशल रीजनिंग में आएगा या नहीं आएगा? सो सर लाइक मैं खुद भी स्कॉलरशिप लाइक देखिए, जैसे सर एक स्क्वायर बनाया, ठीक है, उसको उसमें हम 2 भाग में बांट दिए तो 4 स्क्वायर बन गया। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बराबर 5। इसी तरह से अगर मैं 4 स्क्वायर बनाया, तो एक स्क्वायर बनाया जिसमें 4 खंड बने, 4x4 का ग्रिड बनाया, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना हुआ? तो नीचे में 1 2 3 4 जो है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 प्लस ये 4 प्लस 1 टोटल हो जाता है 30। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इज 30 इन द 4 into 4 ग्रिड स्क्वायर। तो क्या ये जो आपका स्पेशल रीजनिंग है, इसमें ये मैथमेटिकल ट्रिक आवेगा या नहीं? सो ट्रिक्स के बारे में एक चीज होती है, सिखाते वक्त मैं एक पॉइंट शेयर करना चाहूंगा। जब भी हम ट्रिक्स सिखाते हैं ना, तो यूजुअली बच्चे जो है हम सिंस हम सीनियर हैं, हम पढ़ चुके हैं बहुत सारी चीज, हमारा पढ़ के हो चुका है, हम टीचर के फॉर्म में जाते हैं, हमें मैथमेटिक हायर लेवल भी पता होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन कभी कभी हम जब भी बच्चों को सिखाते हैं, हमसे कुछ चीजें ट्रिक्स सिखाते हो स्पेसिफिकली, कुछ चीजें मिस हो जाती है, एंड दैट्स व्हाई। और वो क्या होता है, बच्चे जो है अज्यूम कर लेते हैं कि इसके पीछे मैथमेटिक्स नहीं है, ये मैजिक की तरह काम कर रहा है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रिक्स जो है कभी कभी मिसकंसेप्शन की तरफ लीड करती है हमें बच्चों को, और हम जो आगे जाते हैं क्लास 3 में एक है कि 1 to 9 तक के डिजिट को ट्रायंगुलर में जोड़ें, मैक्सिमम नंबर ऑफ सम कितना होगा इन हाउ मेनी टाइप्स, ये क्लास 3 के मैथमेटिक्स में है। तो दैट इज मैंने डिपेंड ऑन द ट्रिक्स। तो इसको इंक्लूड करना है स्पेशल रीजनिंग में या नहीं करना? जैसे क्लास 3 में दिया है स्क्वायर बनाना है, मैंने 3x3 का ग्रिड बनाना है, उसमें कुछ नंबर कंटिन्यूअस नंबर को रखना है, 1 to 9 नंबर को, 2 to 10 नंबर को, और सम ऑफ डिजिट कितना होगा। जैसे कैलेंडर हमने देखा है, तो सम ऑफ कैलेंडर बनाएंगे तो 9 का ग्रिड, फिर 16 का 4 का ग्रिड बनाएंगे, सम कितना होगा। ये उसमें थोड़ा मैजिकल टाइप का, वो ट्रिक टाइप का है। हाँ, क्लास 3 में इसमें आपको एक क्वेश्चन, कुछ आप सिंस आप ने टेक्स्ट बुक ज्यादा अच्छे से देखे हैं, तो मैं कहूंगा कि आप ये सारे क्वेश्चन जो है कि स्पेशल रीजनिंग का मतलब क्या होता है, क्या क्या एनहांस होना चाहिए, उसके वजह से क्या क्या डेवलप होना चाहिए, वो सारी चीजें ये ट्रिक्स की वजह से डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है। इफ द आंसर इज यस, हाँ, इफ द आंसर इज यस,
mathematical achievement will be there, sir. Achievement to I enhance कर रहा है completely उसका। agree. Mathematical achievement will be there, but that special reasoning ka development. Right now we are not focusing on achievements solely. We are also focusing on special reasoning. I know achievement and special reasoning both are connected, but they are not equal. Sushant ji, actually, Pandey sir is telling that in class 3 there is a topic called magic triangles. You are given only that is 6 numbers, and those 6 numbers you have to rearrange so that every time you get a different total on each side. What are the possibilities the child is supposed to explore by trial and error method, and arrange, then design all the possibilities where he is getting the sum on each side as equal. That is what sir is telling, whether it is our part or not. They need to, I think Deepak sir has also mentioned in the chat that they need to know about the position. And I think if it is related, you can involve. I am giving freedom to all of you that whatever you think is helping special reasoning, उसके बारे में analysis होगा. Like आपको pro views भी मिलेंगे, con भी मिलेंगे कि कुछ किसी टीचर को लगा कि नहीं ये चीज तो नहीं हो सकती, ये चीज यहाँ पे नहीं होगी, उसके बारे में डिस्कशन भी होगा. आपको अगर लगता है स्पेशल रीजनिंग है, आप लाइए वो टॉपिक, उसको जस्टिफाई कीजिए आपके हिसाब से स्पेशल रीजनिंग क्यों है. हमने जो टॉपिक डिस्कस किए या बहुत सारे टॉपिक है हम डिस्कस नहीं कर पाए होंगे, तो वो सारी चीजें क्यों है, वो स्पेशल रीजनिंग क्यों डेवलप कर सकता है, उसके बारे में आपको जस्टिफाई करना है आपके एक्टिविटी के थ्रू. उतना आपको फ्रीडम है कि आप कौन सा टॉपिक चूज कर रहे हैं, मैं आपको फ्रीडम दे रहा हूँ. Okay, any other question from Mr. Sushant before we wind up? No, sir. No. So I want these links I will be sharing this with PPT, and references are this. And I want to thank my math education group, all colleagues, Aluka, Harita, and Shweta, and Government of India for funding us. Sir, please share your also. Okay, I will do that, sir. I will do that. Hello? Yeah. I will do, Sushant. I will do. Yeah. You share it with me, I will share it with everybody. Okay, thank you, Sushant. I think it was a very fantastic session with a lot of interaction with all the participants. And we had our joint commissioner also join the session. And thank you, sir, and our director, sir, also. Okay, on behalf of our director, sir, and all the principals and all the teachers, once again, thank you very much, Sushant. We will meet at 4 p.m. Just to see how they are going to present it. Okay, dear participants, just one or two announcements. I am sharing the link for attendance now. Please give the attendance and check whether, I think I have already shared the PDF file and Excel file of your names checked for e-certificate generation. Please do it. If there is any mistake, please tell it. Otherwise, it is very difficult for us to change it after e-certificate is generated. Thank you. Please give your attendance. We will be back at 4. Okay, sir. Bye everyone. See you at. Okay, you can leave.